Welcome back to the 387th episode of Thought Behind Things. Today is the 1st of December 2023 and आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं all the way from Germany, जिनका जो सबसे मज़ेदार बात ये है कि he actually built a startup that he sold to Meta being the company जो Facebook को own करती है. Originally they were called Facebook, now they're called Meta. और जर्मनी की ये if I understand this correctly, this was the first acquisition for Meta in Germany. Definitely the first and probably the only one for a Pakistani. और जो जर्मनी का हेडक्वार्टर्स है मेटा का वो इन्हीं की कंपनी से फिर इवेंचुअली बना. इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी. बिफोर एक्चुअली गोइंग टू जर्मनी एंड building this startup, he actually did a medical startup in Pakistan जिसके लिए he went to Stanford as well and won a global competition there as well. He was super viral back in 15-16, but he wasn't able to commercialize that. In this conversation we discussed startups in general. Pakistan में क्या वजूहात हैं कि startups नहीं चल सकती. What are some of the major problems जो कि पाकिस्तानी founders face कर रहे हैं? What are some of the major weaknesses जो पाकिस्तानी founders में हैं? It's a super insightful conversation. The story is incredible, but more than that, we very deeply discussed the overall ecosystem, the industry, the problems, and there's a lot of insight for people, particularly जो कि startup spaces में पाकिस्तान में interested हैं. So I hope it is as insightful for you as it was for me. I had a great time. अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. It really helps the algorithm. अगर आपके कोई thoughts हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताएं. Read all the comments and it really helps improve the quality of the conversation. अगर आप overseas पाकिस्तानी हैं तो do consider helping us through the Stripe link below. It will help us remain independent for as long as possible. But anyways, here is Awais Shafique on TBT, Islamabad studio. Awais, how are you? Pretty good, alhamdulillah. And you? Thank you, alhamdulillah. Thank you for coming on the show. Pleasure, thank you. मैं conversation को थोड़ा सा start करूँगा, just trying to understand where were you born and early life आपने कहाँ पे गुजारी? I've been all over Pakistan. मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था, but mostly मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है वो मैंने इस्लामाबाद में गुजारी है. And I've lived there for a while. And education कहाँ पे आपने? Early education, जो मेरे बैचलर ओवरऑल ओके यार अर्ली एजुकेशन मेरी मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, मॉडल कॉलेजेस में पढ़ा हूँ. तो मेरा जो सर्कल है इट्स वेरी वाइड, हर तरह के लोगों में. मिडिल एंड हाई स्कूल कहाँ पे था? यार मैं मॉडल कॉलेज में पढ़ा था. कौन से वाला? G10 4 में हम रहते थे. IMCB G10 4 में. How was that? Yeah, it was pretty good. उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा था, पाक तुर्क का. आपको पता कि नहीं? I've heard they're incredible by the way. यार बहुत अच्छा था. It was great time उस वक्त. मैं मॉडल कॉलेज में इस तरह आया कि like I said we're from a very humble family. मेरे अबू जो हैं was the only one who studied, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है UT से. हमारी सोसाइटी में जिस तरह नॉर्मली होता है कि किसी ने कह दिया कि यार ये बड़ा अच्छा स्कूल है, यहाँ चले जाओ. मैं पाकतुर्क में था, स्कॉलरशिप वगैरह में पढ़ रहा था. मेरा छोटा भाई था जो कि इवनिंग में जाता था किसी मॉडल कॉलेज में. किसी ने कहा कि यार आपका बच्चा मॉर्निंग में चला जाए तो छोटा भाई भी मॉर्निंग में आ जाएगा. मुझे पाकतुर्क से निकाल के उधर डाल दिया, मेरा भाई भी मॉर्निंग में आ गया. सो वी वर इन मॉडल कॉलेज. कुछ अर्सा वो पाक तुर्क से बड़ा शिफ्ट था विद द पीपल जो वहाँ पे थे. गेव मी अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ इस्लामाबाद व्हिच इज़ वेरी नाइस. फिर उसके बाद मैं What do you mean by कि different crowd था या different? It was यार मॉडल कॉलेज में I mean I think आप भी इस्लामाबाद से हैं तो diversity ज़्यादा है. There is a lot of diversity, let's call it that way. That's a good way to put it. वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, right? And you're a bit closer to reality. मेरे ख्याल से पाक तुर्क जैसे स्कूल इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल्स में आप बहुत बबल में होते हो, right? Disconnected होते हो. Generally the 1%ers of our society. Yes, absolutely. And when you go to
public schools do you begin to realize that the 99%, and it's huge by the Yeah. way, they're very different and have a different reality altogether. Yeah. What was the experience like? What was the education like? What was the culture, the friends that you made? Tell me about that. यार आई थिंक जिस भी जगह मैं गया हूँ जहाँ पे मुझे भेजा गया वहाँ पे मैं खुशी से नहीं गया इनिशियली, Right. बट आई हैव लव्ड दैट प्लेस जब मैं वहाँ चला गया हूँ. उस एवरी सिंगल एक्सपीरियंस मेरे स्कूल का, मेरी यूनिवर्सिटी का वर्क एक्सपीरियंस हैज़ शेप्ड मी टू द पर्सन दैट आई एम टुडे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, Right. एंड हैज़ प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन दैट. मॉडल कॉलेज के आप कल्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे द एजुकेशन वाज प्रीटी गुड आई वुड से. आई मीन मेरे ख्याल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इट्स वेरी सेल्फ ड्रिवन, मतलब आपको खुद से यू हैव टू डू समथिंग. और क्योंकि मैं बड़ा बच्चा था तो पेरेंट्स का बहुत फोकस था कि यार ये कुछ करेगा आगे जाके तो इस पर मेहनत करनी The first चाहिए. child is always the ultimate experiment, हाँ, right? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दे वर लाइक यार इस पे थोड़ा सा ज़रा मेहनत करते हैं, व्हिच आई थिंक पेड ऑफ. Right. So it was a great experience, I would say. And then for FSC, you went to Bahariya College? Yeah, हाँ, Bahariya College again, really good friend of mine now, one of my best friends. वो मुझे किसी एकेडमी में मिला. I hated the guy at that time. मेरे अबू से मिले, किसी ने कहा यार Bahariya College बड़ा अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए आपके बच्चे को. मैं मॉडल कॉलेज में सेट हो गया था, मेरे दोस्त बन गए थे. आई वॉज प्लेइंग स्पोर्ट्स, आई वॉज लाइक इन माई, बड़ा खुश था मैं वहाँ पे. वो मेरे अबू से मिले, उसने वैसे ही उन्होंने कहा कि यार ज़रा बहरी कॉलेज का फॉर्म तो ला देना. वो लेकर आया. आई वाज लाइक यार क्यों कर रहे हो तुम? मैं खुश हूँ, ना करो. उन्होंने कहा यार वैसे ही अप्लाई कर दो, क्योंकि किसी दोस्त ने कहा था. एंड इवेंचुअली बहरिया कॉलेज में चला गया. द गाय बिकेम वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स नाउ. Right. इस्लामाबाद में ही रहता है. Interesting. This was what year was this? 2012? यार हाँ, it's 2012 जब मैं FSC से ग्रेजुएट हुआ और मैं अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की है मैंने. Interesting. Why did you choose electrical engineering? And यार थोड़ा सा मुझे कॉलेज टू यूनिवर्सिटी का जो ट्रांजिशन था. कॉलेज से यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताता हूँ. मेरे वालिद साहब जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, राइट. और उस टाइम लाइक आपको कुछ पता नहीं है. किसी ने अगेन कहा कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मेरिट बहुत हाई होता है, तो मेरा ख्याल है वो करना चाहिए. नास्ट में सीक्स जो H12 है वहाँ पे जाना चाहिए. इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स. Right. You were always a good student? यार आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. लेकिन मतलब आई थिंक आई कांट रियली से कि यार मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए की क्योंकि इट वाज अ हायर मेरिट, क्योंकि मेरे अबू मैकेनिकल इंजीनियर थे. बचपन से ही उन्होंने मुझे कहा यार साथ आके ये तो चीज़ फिक्स कर दो मेरे साथ. तो मैं और मेरा छोटा भाई जो है दोनों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, और दोनों का ही यही एक्सपीरियंस रहा है कि वी वर वेरी टेक्निकली सैवी. लाइक हम छोटा मोटा कुछ ना कुछ करते रहते थे, टिंकर करते रहते थे. तो दैट रियली प्लेड अ बिग पार्ट कि मैं कैसे आई वेंट इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं. ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है Sarmaaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं. अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट Sarmaaya Financials प्लेटफॉर्म. इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है, और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं. सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स. नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. Do you think in hindsight you would still do electrical engineering at the time, or would you be like यार सॉफ्टवेयर साइड पे चला जाता? यार मैं 100% सॉफ्टवेयर में जाता, to be very honest. I think there is a lot, like I think maybe मैं different गलत impression दे रहा हूँ. मेरा भाई maybe he's smarter than I am. He's done pretty well electrical engineering में भी. पाकिस्तान में या he's gone abroad as well? पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में अच्छी जॉब की उसने, फिर बाहर चला गया. म्यूनिख में होता है मेरे साथ. मैं शायद इतना अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं था.
मेरी डिफरेंट एस्पिरेशंस थी, बट मैं क्योंकि अब जिस फील्ड में मैं अब हूँ, लुकिंग बैक एट इट, मेरे ख्याल से मैं डिफरेंटली चूज़ करता. बट द फनी थिंग इज़ कि आई डोंट थिंक देयर वाज एनी अदर वे टू गेट हियर. मैं मुझे लगता है कि मेरे जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं दैट हैव मेड मी द पर्सन दैट आई एम टुडे, और आई वुडंट डू इट डिफरेंटली. जो वो स्ट्रगल है, जो मेरा पाथवे था, आई थिंक दैट आई वुड कीप इट द सेम. आई वुड से. Interesting. How was Nust overall as a university experience, not just the electrical part of it? यार नस्ट मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मेरा टाइम रहा था उसमें. बट जब आप नस्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एंड यूर गुड स्टूडेंट, हमेशा आप रहे हैं अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ पे बड़ा प्रेशर आया कि यार टू बी गुड. जब आप वहाँ जाते हैं और हर बंदा ही अच्छा है, तो यूर सॉर्ट ऑफ द एवरेज. वो एवरेज इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको सही हिट करता है. एग्जैक्टली. मेरा तरीका टू एक्चुअली डील विद इम्पोस्टर सिंड्रोम वाज कि यार मैं मे बी okay, I'm not good at studying, right? मैंने accept कर लिया. There was acceptance. It wasn't like going to depression or whatever. और उसमें वहाँ पर I mean the top students of all over Pakistan are there, right? So yeah, हमें ये बताया जाता है cream है पाकिस्तानी, which is true. आती है cream, आती वाकई सबसे अच्छे students आते हैं. So the average वो higher हो जाती है, right? और फिर बेसिकली यूर जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. मेरा आई हैड टू, मैंने आपको जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से, मेरा थोड़ी सोच ये थी कि यार मैं थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्टिव था, राइट. तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ आगे. और वो सोचते सोचते मुझे एक्सेप्टेंस से मैं वहाँ चला गया कि यार मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, आई कांट गेट गुड ग्रेड्स, लेकिन मैं आई कैन बी ए गुड इंजीनियर, राइट. मैं काम सीख सकता हूँ और मैं कुछ काम से कुछ बना सकता हूँ. तो मेरा वो एक्सेप्टेंस वाज माय वे ऑफ डीलिंग विद इम्पोस्टर सिंड्रोम. Interesting. Do you think you were generally a street smart person? Yes. Someone who would tinker around and find ways out in innovative styles? I would say yes as a short answer. उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ऑलमोस्ट हर 2 साल बाद कोई ना कोई स्कूल चेंज किया और लाइक चेंज किया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. उससे मैं हर तरह के एडजस्टमेंट आ गई, बबल में नहीं था. मैं हर के तरह के लोगों से मिला हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक मुझे स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थोड़ी सी मिली, जिसकी वजह से मुझे ये एबिलिटी मिली कि मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को व्यू कर सकता हूँ, which I think became one of my strengths. Interesting. Within Nust, you started to build your first startup, or was that after graduating? नहीं, it was in Nust. Okay, what was that? यार हम लोग बना रहे थे ट्रेमर्स की डिवाइस. पार्किंसंस एक डिजीज़ होती है जिसमें एक कंडीशन होती है, उसे कहते हैं ट्रेमर्स, एसेंशियल ट्रेमर्स. इट्स अ कंडीशन for your symptom कह लें. For those who don't know, tell me about Parkinson's and what happens there. I'm not an expert in that. Right. उसमें मैंने जिस तरह बताया कि the disease has a side effect or like an effect on your body, जिससे आपके कोई भी body part uncontrollably shake कर सकता है. हम particularly essential tremors पे काम कर रहे थे. उसमें बेसिकली आप अगर कोई कप उठाने की कोशिश करते हैं, आपका हाथ हिलना शुरू कर देगा. वो इंटेंशनल एसेंशियल ट्रेमर आ जाता है. आपका हाथ कांप रहा है, आप चाय नहीं पी सकते, राइट. आप अपने बटन बंद करें, बटन ही बंद कर सकते. मेरा अगर इफ़ यू वुड लाइक, हम थोड़ा बैकग्राउंड में भी डाइव करते हैं कि वाई आई स्टार्टेड द कंपनी. लाइक आई टोल्ड यू, मेरा बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है. मेरे फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया, और द एक्सपेक्टेशन वाज कि यार मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करूँगा और मैं फैमिली में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूँगा टू गेट आउट ऑफ द डेट जो भी हमारा था फैमिली का. और मेरा यही प्लान था और यही एक्सपेक्टेशन थी फॉर द मोस्ट पार्ट कि मैंने यही करना. मैं 3rd ईयर में था जब हमारे एक काफ़ी मशहूर प्रोफेसर हैं सीक्स में, उन्होंने वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं. What's his name? सर माजिद मकबूल नाम उनका. Right. तो वो ही इज़ लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल सीक्स में, काफ़ी अर्से से वहाँ पे. उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया. और 3rd ईयर में मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार मैं अच्छा इंजीनियर तो बन सकता हूँ, बट पाकिस्तान में आप अच्छा इंजीनियर बन के भी क्या करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. उस टाइम पे आप
किसी PNG में जा सकते हैं एंड इवेंचुअली आप पावर प्लांट में जाके व्हाटएवर मेंटेनेंस कर रहे होते हैं. तो आई थॉट कि यार ये नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी इट फॉर मी, राइट. फाइनेंशियली तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा ही किसी ना किसी तरह से, बट मेरी भी कोई एस्पिरेशंस हैं. कोई पर्पस है ना कि मैं पर्पस होना चाहिए. ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं दुनिया को क्या वैल्यू प्रोवाइड करूं? एम आई जस्ट डूइंग मेंटेनेंस? एग्जैक्टली, रिडंडेंट काम है. एग्जैक्टली मुजम्मिल, वो बात है ना कि आप ये वो बेसिक नीड्स से बाहर आते हैं तो ये सोचते हैं ना, ये रोटी कपड़ा मकान से बाहर आते हैं. मैं उधर ही फंसा हुआ था अभी, कि मैं कैसे उस जगह से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करूं फाइनेंशियली. उस टाइम पे मैंने जो आपको प्रोफेसर का बताया, वो उनको पार्किंसंस था. ही वाज वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह करियर वाइज, सॉर्ट ऑफ पर्सन जिनको यू एस्पायर टू बी, आप चाहते हैं कि जैसे बने. उनका ही हैड एसेंशियल ट्रेमर्स, और उनसे मुझे देख के नज़र आया कि यार ही हैज़ एवरीथिंग, लाइक फाइनेंशियली आई वुड लाइक टू बी दिस पर्सन, एडमायर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, बट सैडली उनका अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, राइट. मुझे उससे पता चला कि यार इस दुनिया में पैसे का क्या फ़ायदा अगर आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही, राइट. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ किसी भी चीज़ पे, अगर मैंने मुजम्मिल की लाइफ में इम्पैक्ट करना है, मैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसकी हेल्थ में डाल सकता हूँ. उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कुछ अपने नॉलेज से इनकी हेल्प कर सकता हूँ. उस वक्त तक मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कुछ आइडिया नहीं था. आई वाज लाइक यार क्या होता है ये सब कुछ. और मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि यार मैं कोई डिवाइस बनाऊँ, मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो कि मैं इनकी हेल्प कर सकूँ, राइट. दैट वाज द थॉट प्रोसेस इनिशियली. और हमने बनाया क्या, उसके बाद एसेंशियल ट्रेमर्स में आपके हाथ रिदमिकली हिलते हैं, राइट, या कोई भी बॉडी पार्ट. हम हैंड्स पे फोकस कर रहे थे. हमने एक डिवाइस बनाई थी, वेरिएबल डिवाइस, जो कि आपका ये रिदम जो है वो मेजर करके उसको काउंटरैक्ट करे. और हमें लग रहा था यार ये दुनिया में कभी कहीं ना कहीं बनी होगी. वी वर लाइक यार चलो छोटा मोटा कुछ कर लेते हैं, इधर पाकिस्तान में बनाने की कोशिश करते हैं. बट व्हेन वी रिसर्च्ड हमें पता लगा कि यार इट्स अ नॉवल कॉन्सेप्ट, ये अभी तक नहीं बना हुआ. एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग कंपनी फॉर दैट. नहीं, सो पहले तो मुझे ये बताएं, व्हाट वर यू डूइंग, लाइक हाउ डिड दैट डिवाइस फंक्शन, राइट. एंड at this point in time, was this a white paper, or did you actually have a sort of an MVP or a proof of concept out there? Yeah, we started building an MVP. क्योंकि like I said, मेरा मकसद, जो मेरी thought process थी वो ये था कि यार एक बंदे की हेल्प हो जाए, इसी के लिए मैं कुछ बना दूँ. It was more like यार मैं टिंकर कर लेता हूँ तो कुछ ना कुछ करके मैं इनकी हेल्प कर दूँ, राइट. उसी को मैंने अपने फाइनली प्रोजेक्ट में भी डाल दिया. मैंने कहा यार चलो, like I might as well be credited for it. तो वहाँ से हमने बनाना शुरू की. उसका एक पार्ट था डिटेक्शन का, विच वाज डिटेक्टिंग कि आपका हाथ कैसे मूव करता है, राइट. वो कुछ कैलिब्रेट करता है, उसे पता लगता है कि यार एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे आपका हाथ हिल रहा है. उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करता था आपके मसल्स की. आपके मसल्स बेसिकली बाजू के देयर इज सेगमेंटेड इनटू 2 मेजर पोर्शंस जो कि आपके हाथ को फ्लेक्स करते हैं. तो अगर आप एक सर्टन ग्रुप ऑफ मसल्स को एक्टिवेट कर दो तो आपका हाथ एक डायरेक्शन मूव कर जाएगा, वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, और दूसरे करो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा. तो यू कुड समहाउ रिदमिकली मिटिगेट, थोड़े सा कम कर सकते थे उस मोशन को इनफ कि वो बंदा अपने नॉर्मल काम कर सके. And were you able to achieve that? So very roughly, like I said, super MVP. अब वो हमारे सर अभी जब स्टोरी सुनाते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं कि यार मुझे करंट लगाते थे पता नहीं कितने साल. तो he was our patient zero. फिर हम एक हॉस्पिटल के साथ भी काम कर रहे थे, वहाँ पे हमें पेशेंट्स मिले. बट वही बात है जो हम पहले बात कर रहे थे कि आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे देयर इज़ नो प्रॉपर मैकेनिज़्म कि आप उस चीज़ को कमर्शलाइज कर सकें. क्योंकि how can you directly jump into human testing without like वो जो आपने बोला सारा research करने के बाद, और like तो let's call it that way, like yes, it was working for a certain group. And you guys went took that product, it didn't just come up in a university and die in that university, you took it abroad as well, you went to competitions. Tell me about that. फ़नी स्टोरी, उस वक्त जो इंसेंटिवाइजेशन थी वाज मोर लाइक कि यार इस चीज़ को कितना हम खींच सकते हैं,
Cancer. To put it very mildly. Very mildly. That's true. But like I said, हमारा जो core था, जो हमने जिस वजह से start किया था, वो basically was to actually help someone. जो आपने बात की खींचने की, वो ये था कि how can we get publicity around this, जिससे हम फिर आगे में भी फंडिंग रेज कर सकें. बिकॉज जब 2016-15 की बात कर रहा हूँ, लाइक नो वन इन माई फैमिली हैज़ डन अ ट्रेडिशनल बिजनेस. मुझे VCs का कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे पता नहीं है फंड रेज कैसे करना है. हाउ डू यू actualize this thing into something legitimate? आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, आपने हार्डवेयर बना लिया, यू नो, उसको मैं कैसे प्रोडक्ट बना के बेचूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ का, राइट. एंड देयर इज़ नो मैकेनिज्म जो मुझे बताए उस चीज़ के बारे में कि यार ये करोगे तो आप रेस करोगे. उस टाइम भी बहुत ट्रेंड था, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में भी, बाद में आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत कंपटीशंस होते थे, पिच कंपटीशंस होते थे, यू वुड गेट मनी आउट ऑफ इट. हमने पाकिस्तान में करना शुरू किया, and I think we were great at selling a story. It was something people could relate to directly. Pain थी एक actual लोगों की. हमें personal messages आते थे कि यार आप जितने पैसे ले लें, हमारे अबू का, हमारे भाई का, अम्मी का ये मसला solve कर दें. Right. So it was a real pain people could connect to. और we had a good way of building a product. मतलब हमारा vision अच्छा था कि कैसे बनेगा. तो हमने पाकिस्तान में pitch करना शुरू किया. Every competition that we would go to, we would win it. हमने कहा यार बाहर भी चले जाते हैं, फाइनल ईयर में हैं, वाई नॉट. बाहरी कंपटीशंस में अप्लाई करना शुरू कर दिया. उस टाइम पे आप नस्ट की वेबसाइट पे आ जाते थे अगर आपने किया था. मैंने कहा यार वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग मिल रही है, चलो यार और अप्लाई करो. यू वुड गेट सम मनी आउट ऑफ इट एंड देन यू वुड पुट इट इनटू द प्रोडक्ट. आपको, मुझे यही नज़र आया कि यार अब पिच कंपटीशंस में जाओ, थोड़ा सा पैसा मिले, उससे प्रोडक्ट को थोड़ा सा आगे कर लो, कंपनी की ब्रांडिंग थोड़ी सी बेहतर कर दो. यही मुझे तरीका नज़र आ रहा था फॉर रेजिंग मनी. हम लोग we did a bunch of trips. US के इधर उधर गए. एक जो मेजर इवेंट हमारा हुआ था in 17 I believe, वो ये था कि हम लोग स्टैनफोर्ड में बुला लिया. हेल्थ लॉन्जेविटी सेंटर है वहाँ पे स्टैनफोर्ड में. उनका कोई कंपटीशन हो रहा था where you would build a device जो कि लॉन्जेविटी प्रमोट करती है. ये लॉन्जेविटी में बहुत अच्छा फिट हो रहा था कि यार आप एक एल्डरली एज पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं ट्रेमर्स के, वहाँ पे वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर करें. उस वक्त ट्रम्प भाई इलेक्ट हुए थे. और जब हमने जाना था उस पिच कंपटीशन में, तो वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिला. तो हमने कहा यार हम तो प्रोटोटाइप लेके जा रहे हैं. वहाँ पे हमारा प्रोटोटाइप था, आप इमेजिन करें, एक घड़ी से मैंने बनाई हुई थी जो कि डिटेक्ट करती थी. उसके अंदर एक सर्किट था, नॉट पैकेज्ड एट ऑल. एक बोर्ड मैंने बनाया हुआ जिसमें से तारे निकल रही हैं. वो मैंने पहली दफ़ा हम गए US एक और वजह से, मैंने वो अपने बैग में रखा हुआ, हैंड कैरी में रखा हुआ. और मुझे उन्होंने, ये तो वो क्या होता है, वो जब बच्चे के साथ भी हुआ था, वो क्लॉक लेकर आ गया था. Exactly. उन्होंने मुझे साइड पे बुला लिया 3-4 घंटे. उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो तुम. उनको फिर मैंने किसी एक इवेंट का वो दिखाया कि यार यहाँ जा रहा हूँ मैं, नहीं कुछ बना रहा, ये काम करता है. आई हैड टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग. दूसरी दफ़ा गया तो जब ये स्टैनफोर्ड वाला था, तो उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, अपना हार्डवेयर नहीं लेके जाने दिया, इवन लैपटॉप्स भी नहीं लेके जा सकते थे हम लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स बैन है पाकिस्तान से. तो हम लैपटॉप भी नहीं लेके जा सके थे. अच्छा, so you had to rebuild the product over there? नहीं, कुछ भी नहीं. हमने बस फिर वीडियो रिकॉर्ड की उसकी पाकिस्तान में. अच्छा. कोई उम्मीद नहीं थी कि यार कुछ होगा. और वहाँ पे जो बाकी सारी, हम एशियन रीजन से सिर्फ आई बिलीव हम थे. अच्छा. बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो थी MIT, हार्वर्ड, बर्कले, सारे बड़े बड़े नाम. हम वहाँ गए, हमने कहा यार मुफ्त खाना मिल जाएगा, स्टैनफोर्ड देख लेंगे, एक्सपोजर है, लोगों से मिल लेंगे. हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे वैली में, हमने कहा उनसे मिल लेंगे. वहाँ गए हम लोग, वहाँ पे हमने पिच किया. पिच करके बाहर आ गए, खाना खाया. खाना खा रहे थे तो उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू किया. हम लोग वापस गए तो हम लोग बैठे, हम बाय सम मिरेकल वी एक्चुअली वॉन. और एक्सक्यूज मी, मेरे जैकेट की पॉकेट में पाकिस्तान का फ्लैग था. मुझे था कि यार तस्वीर बनेगी तो हम निकाल लेंगे, पाकिस्तान से गया कोई. तो वी एक्चुअली वॉन. हम स्टेज पर चढ़ गए, मैंने पाकिस्तान का फ्लैग निकाल लिया. एंड समवन टुक अ पिक्चर एंड वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट. स्टैंडिंग ओवेशन हमें इसलिए मिला, और समवन सेड समथिंग व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट. उसने कहा था
कि this shows कि innovation is not limited to any geographical region. इसका मतलब ये है कि हमें innovation कहीं से भी आ सकती है, दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की improvement के लिए innovation कहीं से भी आ सकती है, and we should support these people. और वो California was is the mecca of technological innovation, right? yes. और I think वो wouldn't call it anti-Trump, but वो Trump के इतने बड़े supporters नहीं हैं. I think that was also promoting a messaging कि यार आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पैन लगाया हुआ पाकिस्तान पर, वहाँ के बच्चे आके एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के वो they're building something जो कि revolutionary हो सकती है, right? और that went viral, like that picture went viral. अगले दिन मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आ रहा है, मुझे न्यूज़ चैनल की कॉल आ रहे हैं, मैं उधर ही बैठा हूँ वैली में, और वहाँ पे कॉल आ रही है कि यार ओ यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए. एंड समवेयर इन द मिडल आई बिलीव वी गॉट लॉस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता, यू नो. आप थोड़ा सा दोबारा इसको रिकैप करें. समवन जिसकी फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया, किसी को पता नहीं है बिज़नेस कैसे करना है, किसी को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, किसी को ये नहीं पता कि पैसे कैसे रेज़ करने हैं, उसे बेसिकली आप पिच कंपटीशन की तरफ ले गए एंड देन दे जस्ट गेट गुड एंड गुड, रियली गुड इन दैट. इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो चीज़ हमारे सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत अच्छा था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में आई गॉट रिवॉर्डेड फॉर इट. ग्रेट, ग्रेट, परफेक्ट. दैट आई फेल लाइक यार वो दैट वाज द पीक राइट फॉर मी. और मुझे लग रहा था इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कर लिया जो मैंने करना था, मैं आ गया हूँ, बस हो गया. और व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक्स बैन तो लगा हुआ था, हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे यूएस के साथ. कुछ मेडिकल डॉक्टर्स थे स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में, वो मुझे कह रहे थे कि यार ओ यू नो हम कोलैबोरेट करते हैं. मैंने उनको कहा कि यार सॉरी मैं तो पाकिस्तान आ गया हूँ. उन्होंने कहा ओ अच्छा हम काम नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि यार एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, नॉट थर्ड वर्ल्ड बट लाइक डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी से प्रोडक्ट बनवा सकते हो. हाउ वुड यू शिप दैट प्रोडक्ट, और टेस्ट होगा और कैसा सब कुछ होगा, राइट? उनको भी मैकेनिज्म नहीं पता. पाकिस्तान में कोई बैठा नहीं है जिसको पता है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, इसको लेके आगे कैसे चलना है, हाउ टू कैपिटलाइज ऑन दिस फेम. And unfortunately or fortunately, I think everyone just played a part in that. Everyone got rewarded for that fame a little bit, jo saath the. And eventually that fizzled out. And I think I personally, and also my two co-founders, I think I personally went into depression because mujhe laga tha this was the end. मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि यार व्हाट हैपन विद द डिवाइस, मुझे कुछ नहीं पता कि इसको आगे कैसे लेके चलना है, राइट? एंड सैडली आई डोंट नो कि यार इसके बाद क्या होगा. और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी हार्डेस्ट नेगोशिएशन जो थी वाज विद माय पेरेंट्स. जब उनको मैंने बोला था कि यार आप मुझे टाइम दे दें थोड़ा सा बिजनेस करने के लिए, मैं आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता अभी, और मैं अपना कुछ करना चाह रहा हूँ. और वो लड़ाई करके मैं जो है बना हूँ. मेरे पेरेंट्स ने इवेंचुअली सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बट I don't know the answer to what you can do next. Yes, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा. And I felt like the biggest failure. I felt like यार I failed my professor, I failed all the patients, and I felt like I failed my parents. Right? उनसे मैंने तो वादा किया कि यार ओ मेरी ज़िंदगी में तो बड़ी I could be the next big thing, I could build this new product, and as a result मुझे पैसा भी मिलेगा इसका, right? But that was, I think, one of the worst points in my life when I was really depressed. Do you think if you were to look back, because for you largely you were just pursuing, आपको एक opportunity नजर आ रही थी, आपने opportunity pursue की. अगर आप honestly उसमें देखें भी तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी. आपने कुछ पढ़ा हुआ था, आपने उसके अराउंड परस्यू करना शुरू किया, आपने सर्टन टाइम लगाया. फिर जब इस तरह की आपको फेम आती है ना, तो उसमें particularly media and when people are talking about things, so they add a lot of themes that are great, they feel great, but they sell well as well. So आपके इर्द गिर्द आपको लोग आके करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो जीनियस है ना, like he is the next big thing, he is gonna change the world because oh wow, and you start believing that. You start believing that, right? And एक पॉइंट आता है जिसमें जब आपको
फर्दर आंसर्स नहीं आ रहे होते तो आप अपने ही दलदल में फंस चुके होते हो, बिकॉज आपका अगर मीडिया फेम नहीं थी तो आपको आंसर्स नहीं आ रहे, इट्स फाइन. बट जब आपको मीडिया फेम मिल गई है और आपको आंसर्स नहीं आ रहे, नाउ एवरीबडी इज लाइक लुकिंग एट यू ऑल एक्साइटेड के okay, Awais, what's next? And you're like, I don't know, I'm just a kid. I have no idea. Do you think that played a bigger role in you seeing how you see yourself? जो आपने कहा ना failure, शायद अगर वो मीडिया फेम ना होती, अगर वो आवाज़ें ना हो रही होती कि Awais is going to change the world, Awais is going to do something big, तो शायद आप इतने बड़े फेलियर ना करते. आप कहते हैं हाँ ठीक है मैंने ट्राई किया, यहाँ पे मैं फंसा हूँ तो मैं फंसा हूँ, and I'll see what I'll do. But the media then made you a prisoner of your own. Do you get it? Yeah, I get it. I think बहुत interesting perspective है इस चीज़ को view करने का, and I think I completely agree with you. मेरे ख्याल से it was the expectations, you're right, and ये सारी all of the support turned into expectations, which turned into me feeling I was the biggest failure at that stage, क्योंकि मैं expectation ही नहीं पूरा कर पा रहा था. And if you go back, dive deeper a little bit, आपने मुझसे सवाल किया कि कहाँ पढ़े, were you a good student? I think जो भी आप कर रहे हैं, that's eventually वो pressure build हो रहा है, आपको feel हो रहा है कि you're a good student. आप expectations, and मेरे लिए I couldn't be that good student. Like जब सारे ही अच्छे हैं Nust में, I couldn't be that good student. My changing that expectation was like मैं कुछ बड़ा करूँगा, मैं अपने करियर में कुछ बेहतर करूँगा, जो मुझे नज़र आ रहा था कि मैं कर सकता हूँ, and I felt like कि मैं नहीं कर सकता anymore, right? And that came crashing down to that point where I felt like यार can't do it anymore. Do you think the hit and a dip is necessary to truly be able to understand what value really is? Yes. मेरे ख्याल से that event was a shock to the system, to my system. To your understanding of the system? Yes. No, I mean for internally, how I think things, उस चीज़ के लिए shock था. और वो times था जब मैं like when we had to close shop और कोई avenue नहीं नज़र आ रहा, there's like no one is taking up the device और आगे नहीं चीज़ चल पा रही, कोई help नहीं कर पा रहा, कोई बता नहीं रहा इससे निकलना कैसे है, इसको आगे कैसे लेके चलना है. तो at that point I got a lot of time to think कि what made me get to this point और who I am as a person और मैं क्यों सब कुछ कर रहा था और मैं आगे क्या करूँगा, right? उसकी वजह से आई इवेंचुअली डिसाइडेड कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र आ नहीं रहा था. मैं काफ़ी मायूस था काफ़ी, और दैट वाज आई फेल्ट लाइक आई वाज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट टू द फैमिली, टू माय पेरेंट्स. और उनसे मैंने एक नेगोशिएट किया कि यार प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता. और फिर मैं दोबारा उनसे यही कह रहा हूँ कि यार थोड़ा और टाइम दे दें, मैं बाहर जा रहा हूँ, बाय द वे मुझे पैसे भी दे दें. मेरे पास कोई पैसे नहीं थे टू एक्चुअली गो अब्रॉड. आई हैड नो वे ऑफ गोइंग अब्रॉड. वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एट द टाइम, उसने मुझे कहा था कि यार मैं जर्मनी जा रहा हूँ, एजुकेशन फ्री होती है वहाँ पे, कंप्यूटर साइंस और जो मेडिसिन में भी you could do something, इसको वहाँ लेके जा सकते हो तुम, you could build it कहीं और, right? यहाँ नहीं बना सके कहीं और बना लो. और जर्मनी मुझे चीपेस्ट ऑप्शन नज़र आ रही थी कि यार वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्ला ब्ला, राइट. मैंने अप्लाई कर दिया बिल्कुल लास्ट दिन पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में, कंप्यूटर साइंस बायोमेडिकल कंप्यूटिंग में. बिल्कुल लास्ट दिन मैंने अप्लाई कर दिया बगैर सोचे समझे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था मैं पाकिस्तान में क्या करूँगा. और मैं I got in. उसके बाद I didn't have any money, not even to buy a plane ticket. I think मेरे father की कोई saving was around like $300, like 60,000 थी उस टाइम पे. हमारा अपना घर था बहरिया में, बट हम debt में थे, and the actual saving was just a little bit. उस टाइम पे वही बात है कि another hard discussion at home कि यार मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है जो शायद आप अभी ना देख सकें. एंड आई फेल लाइक यार
मैं शायद डिसअपॉइंट इतना कर चुका था, उन्होंने कहा कि यार चल कर ले तू जो करना है। उन्होंने They were very supportive, I would say. हाँ मतलब फॉर लॉट ऑफ पेरेंट्स विल बी लाइक यार बेटा हो गया ना, अब अपनी औकात पे आ गए तो अब जाके नौकरी करो, पैसे कमाओ. मोस्ट पेरेंट्स इन पाकिस्तान टेंड टू steer clear of the risk that because you knew कि यार there is something in me where I want to pursue a direction और मैं कुछ ना कुछ करके बना लूँगा अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए. बट फॉर जो आपके लेफ्ट राइट लोग होते हैं ना, वो बुरा नहीं चाह रहे होते आपके लिए, बट उनको ये होता है कि यार अभी पहले भी इसको किया था, नहीं हो सका, अभी अपने आपको बड़े उसमें ना डाल दे मसले में. एंड सो दे टेंड टू want you to come to the most average risk averse side. Yeah, exactly. But they didn't push you कि यार नौकरी पकड़ लो या ये कर लो. They were supportive of the idea कि this is what you want to do and this is something that came entirely from you. This is not something जो कि your family pushed you to do. Yeah, मैंने जैसे बोला कि मेरे father I think मेरे सबसे ज़्यादा पढ़े में वो उन्होंने भी बैचलर्स किया यहीं से, बाहर कोई पढ़ने गया नहीं हुआ, तो पता भी नहीं था कि बाहर कैसे जाते हैं, मुझे भी नहीं पता था. और I think they were very supportive for sure, but to be honest, Muzamil, I was at the lowest point in my life, and जब मैंने ये चीज़ realize की कि यार मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, the only way is up now, और मैं I don't have anything to lose. मेरे risk appetite बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, and I realized कि यार अगर मुझे इस depression इस जगह से निकलना है तो कुछ I have to do something, you know, astronomical, और कुछ बिल्कुल ही out of my thoughts वो करना पड़ेगा. कोई नहीं, बाहर गया, मैं चला जाता हूँ, right? और वहाँ change the environment, basically change the environment to get a clear head, right? अच्छा, वहाँ पे मैं जब मेरा एडमिशन हो गया, there was no way I could get the money together क्योंकि बैंक में कुछ रखवाना होता है, कुछ दिखाना होता है, कोई सेविंग ही नहीं थी हमारे पास, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था, कह रहे थे कि यार तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं. मेरे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी मदर ने मुझे लोन दिया, एंड शी सेड समथिंग दैट आई वुड नेवर फॉरगेट. उन्होंने कहा था कि यार अगर पैसे की वजह से ये बच्चा ज़िंदगी में पीछे रह गया तो इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी. शी डिडंट टेल एनीवन, शी गेव मी द मनी. और किसी और हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव हैं, जाने वाले हैं, उन्होंने मुझे फ़्लाइट के पैसे दिए. उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ, तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी अगर तुम यहाँ रुक गए तो, हमें पता है तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है. वो पैसे लिए, जर्मनी गया. 3 महीने में मैंने आइडेंटिफाई किया था एक इंस्टीट्यूट था जो कि so at this point in time you hadn't gotten into a university? मैं चला गया था जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में. पहले एडमिशन हुआ, फिर मैंने सोचा पैसे कैसे आएंगे, फिर मैंने कहा चलो मैं वो प्रोसेस में गया. मेरे अबू के एक बहुत से दोस्त थे, उन्होंने थोड़ा सा मुझे लोन दिया, जिनसे कभी बात नहीं थी. उनको मैंने कहा कि यार कुछ दे सकते हैं तो दे दें. ही हेल्प्ड. ही वाज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर कनाडा में, माशाल्लाह. पैसे लेके मैं चला गया, पहुंच गया जर्मनी. जाते ही मैंने सबसे पहले जॉब पकड़ी. वहाँ पे कॉन्सेप्ट है वर्किंग स्टूडेंट्स का जर्मनी में. उसमें ये होता है कि आपको और जॉब्स नहीं करनी पड़ती, बट आप कोई टेक्निकल जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में और वो आपको पैसे देते हैं थोड़े से, राइट. मुझे जो पहली जॉब मिली उसमें आई थिंक मुझे 1000-1200 यूरो मिल रहे थे, 1500 यूरो मिल रहे थे. उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो इतने पैसे हैं कि मैं स्टूडेंट हॉस्टल में रह के अपना थोड़ा बहुत खाना पीना करके मैं वो भी घर भेज सकता हूँ. तो जब वो मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, और जो क्वालिटी ऑफ लाइक द थ्रेशोल्ड जो मैं सोच रहा था कि यार इतना पैसा चाहिए, जब वो बनाना शुरू हो गया, इवन एट अ वर्किंग स्टूडेंट, 1200 यूरो कुछ भी नहीं, जब वो बनाना शुरू हो गया और मैं घर भी भेज रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूँ. तो बिहाइंड द सीन्स मैंने अपने लिए कुछ करना शुरू कर दिया विदाउट टेलिंग माई पेरेंट्स अगेन. मुझे लग रहा था कि यार मार देंगे, अब मार देंगे कि यार पहले बाहर भी निकल गए, पहले भी फेल कर लिया, अब दोबारा कुछ करना चाह रहा है. तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी पे फोकस करता रहा, मास्टर्स की इनिशियली. बट 3 months में मुझे किसी ने बताया था, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, उन्होंने बताया था कि यार एक इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, म्यूनिक में, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस्ड है, बट वो आइडियाज़ नहीं डेवलप करता, वो लोग डेवलप करता है, राइट. एंड यू माइट हैव द राइट प्रोफाइल टू गेट इनटू दैट. और वहाँ पे
you will find like-minded people, right? तो in 3 months I got into that institute. मुझे नज़र आ गया कि यार मैं स्टूडेंट जॉब करता रहूँ और मैं इस पर फोकस करता रहूँ, मेरा मेन डिग्री गई और आई वुड स्टिल डू ग्रेट, राइट? तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया. मेरा जो इवेंचुअली प्रीसाइज का को फाउंडर था वो मुझे पहले दिन मिला. सुपर obnoxious guy. It's like यार किधर से आ गया. और उसने मुझे कहा यार मैंने तुम्हारी ना प्रोफाइल पढ़ी थी और मुझे लगता है कि we could do something great. और उसने मुझे कहा कि यार अवैस लेट्स फाउंड समथिंग टुगेदर. मैंने कहा यार मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ. मतलब आके तो मुझे बोल रहा है कि कंपनी को शुरू कर लेते. मैं पहले पाकिस्तान में जलील होके आया हूँ, दोबारा नहीं कर रहा मैं. बट आई केप्ट हिम इन माइंड. और जो उस इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क था वो ये था कि इट वॉज पार्टनर्ड विद इंडस्ट्रीज, राइट? वो कोई 25 लोग लेते थे एक सर्टन रीजन से जर्मनी में, और उनको इंडस्ट्री के साथ पार्टनर करके लेट्स से मुज़म्मिल की कंपनी है, मुज़म्मिल कहता है कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है और ये आप सॉल्व कर दें, राइट? आप थोड़े से पैसे देंगे, आपको हायर नहीं करनी पड़ेगी टीम, वो एक इनोवेशन प्रोजेक्ट हो जाएगा. बट वो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके MVP डेवलपमेंट से लेके कमर्शलाइजेशन 1.5 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें यू वर्क विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और उसमें से आप एंड टू एंड एक चीज़ लेके जाते हो. The best thing is कि इसमें ना सिर्फ आपको आइडिएशन कर सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी आइडिएशन की भी मिलती है, बट आपको अपने को फाउंडर्स भी मिलते हैं. द बेस्ट थिंग इज़ कि यार अगर आज आपने कंपनी शुरू करनी है, हाउ डू यू नो कि मैं किसके साथ काम शुरू करूँ? आपको पता है कि यार कोई अच्छा टेक्निकल बंदा है, अच्छा बिजनेस का बंदा है, लेकिन आपने उनके वर्क एथिक्स नहीं देखे अनलेस यू वर्कड विद देम, राइट? तो दिस इंस्टीट्यूट गेव द अपॉर्चुनिटी कि मैं बेसिकली वहाँ पे उनके साथ काम करके उनकी पर्सनैलिटी जज कर सकूँ, एंड देन वी कुड ऑल्सो कम अप विद एन आइडिया. इंटरेस्टिंग. सो आपके 3 co-founders थे इस कंपनी में, राइट? All 3 of them were in this institute? 2 co-founders थे. हाँ, मतलब all 3 of you guys were in the same institute? Yes, we were in the same institute. And how did you come up with this idea in the very start? मतलब is this something that came from the industry? हाँ. या problem industry से आई थी उसको run me through, क्योंकि 1.5 साल का program है. At what point did you decide to actualize this? जो पहला पार्किंसंस वाली डिवाइस थी वो मैंने इनिशियली थोड़ा सा पिच करना शुरू की, बट अगेन जर्मनी में मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए इट्स अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, लाइक अ लॉट ऑफ स्टेप्स. और आई फेल लाइक कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मैं लोन लेके आया हूँ, मैंने लोन उतारना है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ, 2 कब मैं करूँगा उसकी तरफ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सॉफ्टवेयर हैज़ अ लॉट मोर पोटेंशियल, राइट? बेसिकली लाइक आई टोल्ड यू, जो हम कर रहे थे उस कॉल्ड प्रीसाइज. हम लोग बना रहे थे AI पर्सनल असिस्टेंट फॉर शॉपिंग, राइट? लेकिन जो हमारी कोर टेक्नोलॉजी थी जिसके अराउंड सारा प्रोडक्ट बना हुआ था वो ये था कि हम लोग किसी भी फ़ोन से, किसी भी स्मार्टफोन से आपकी बॉडी का एक 3D रेप्लिका बना सकते हैं, which was extremely accurate. And this was 2017? 2018 का एंड, राइट? तो हम लोग एक चीज़ बना सकते हैं जो कि मुज़म्मिल को 3D रेप्लिकेट कर दे without the skin, but his body is very well replicated. और around your body जो error था it was around this much, like it was super accurate. और हमने कहा ओके हम इस टेक्नोलॉजी को कहाँ लेके जा सकते हैं. लाइक ओके यार हम फैशन में ले जाते हैं, यहाँ पे बड़ी मार्केट लग रही है, ऑल दैट प्रोसेस में वी विल गेट इनटू दैट. लेकिन हमने स्टार्ट कैसे किया? Like I told you, the biggest benefit of this institute, it's called CDTM, Center for Digital Technology Management. I am indebted to that institute for my life. And I will tell you what we can take away from that institute. But a little context on that and then back to precise. CDTM has the highest unicorn to alumni ratio. इसका मतलब ये है कि उसने सबसे ज़्यादा unicorns produce किए हैं for the people that it has. मेरी क्लास में 25 लोग थे, उसमें से 18 लोग फाउंडर्स हैं, एंड सक्सेसफुल फाउंडर्स, नॉट जस्ट कि किसी ने भी प्रोजेक्ट शुरू कर लिया. वहाँ पे बिगेस्ट सक्सेस ये है कि जब इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, 20 साल से चल रहा है इंस्टीट्यूट, तो इंडस्ट्रीज़ भी एक्चुअली प्रॉब्लम लेकर आती हैं फिर, राइट? आप बिजनेस के साथ पार्टनर हुए हो, CDTM से ही स्टार्टअप निकला है, उसी का मसला आया, उसी ने CDTM को वापस दे दिया. उसने कहा यार ये मसला आया था, हमने ही हल किया था किसी का, अब आप हमारा हल कर दें.
तो वो मसला जब लेकर आते हैं वहाँ पे हमें एक हमारा CDTM का एक एलुमनाई था, वो यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाते हैं, PPE, कोविड के टाइम में बड़ा वर्ड चला था, PPE बनाते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो बनाते हैं, यूरोप के लीडर हैं वहाँ पे। वो इनोवेशन का हेड था, वो प्रॉब्लम लेकर आया CDTM में, उसने कहा कुछ ना कुछ से तो निकल ही आएगा। वहाँ पे हमने उनके साथ आइडिएट किया, तो हमें पता लगा कि उनका सेल्स का बड़ा प्रॉब्लम है, कि वहाँ पे म्यूनिक में गाड़ियाँ बनती हैं, BMW की वर्कशॉप हैं, वहाँ पे अगर जैकेट्स फिटिंग ना हो, ग्लव्स फिटिंग ना हो, शूज़ फिटिंग ना हो, तो इट्स अ सेफ्टी हैज़र्ड। और वो फिट करने के लिए बेसिकली बड़ा टाइम लगता है, पूरी वर्कशॉप रुक जाती है, इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। राइट, इंडिविजुअल जाएगा वहाँ पे जाके, एग्जैक्टली, वो PP देगा, पूरी वर्कशॉप रुकेगी, 1000 बंदा आके कपड़े ट्राई करेगा, बॉडी चेंज होगी, दोबारा आएगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ, इट कॉस्ट्स देम अ लॉट। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो मैन्युफैक्चरर है यही कुछ कर दे, ये कोई टेक्नोलॉजी बना दे ताकि हमें जाना ना पड़े। कोविड भी आ गया था उस टाइम पे, आ रहा था, और 2020 में, बट तो हमने कहा यार हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं मेडिसिन में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, इस टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरा जो CTO था उसका भी एक AI में पेटेंट था अराउंड दिस कॉन्सेप्ट, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने कहा यार ओके, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, व्हाट इफ़ हम इसको इस प्रोडक्ट के अराउंड इनकैप्सुलेट कर दें, कि हम कहें यार 3D मॉडल, अच्छा चलो आपके कपड़े आपको पता लग जाएंगे कि 3D मॉडल के साथ कैसे फिट हो रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ वहाँ से शुरू हुई। हमारा पहला पेइंग कस्टमर भी वही बना, राइट, क्योंकि इंडस्ट्री ने कहा कि यार ये तो हमारा मसला हल कर देगा। तो उन्होंने हमें पे भी करना शुरू कर दिया उस चीज़ के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हमारी डेवलपमेंट शुरू हुई, हम स्टूडेंट थे, तो वी गॉट टाइम टू डू दैट, and but that's how we got started on this. What about your other masters? Did you leave that at some point? यार हाँ, बेसिकली जर्मनी में they give you flexibility के आप थोड़ा लेट करके मास्टर्स अपने ख़त्म कर दें। मैं 1-2 एग्ज़ाम जाके दे देता था, बिल्कुल आखिरी दिन, बिल्कुल बेयरली पास कर रहा था। बट व्हेन प्री-साइज स्टार्टेड मेकिंग मनी, तो हमने कहा चलो यार, I can take that risk. I can take that risk, yeah, I can leave. Interesting. And you initially went, so how does it work in Germany? This institute and the first institute inherently were free? Sorry? Both of these institutes were free? Yeah, exactly. And you got into the second institute because of your medical device experience, basically? हाँ, मैंने वो चीज़ पिच की थी। मैंने कहा था कि यार मैं I've founded, मैं करना चाह रहा हूँ कुछ, तो that helped me quite a lot. आई थिंक द बेस्ट पार्ट वो कि वो 25 लोग जो लेते हैं वो क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं, राइट। तो बेसिकली कोई टेक्नोलॉजिस्ट होगा, कोई बिजनेस का बंदा होगा, कोई डिज़ाइनर होगा, वो मॉडल वर्क्स रियली वेल, उन सबको साथ पढ़ाते हैं, और वो जब डेवलप करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आई साथ यही PPE वाली, तो हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव भी था। कोई उस टाइम पे समवन कुड फोरसी के यार अच्छा दैट कुड बी बिजनेस एज वेल, मैं टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव ला सकता था। फिर कोई डिज़ाइनर था जो कि इनकैप्सुलेट कर सकता था इस चीज़ को इनटू अ नाइस प्रोडक्ट। So in this case, you guys were 3 people in the team, or in the start there were multiple people working on this? Yeah, there were multiple people on the concept. लेकिन then I told you about the guy जो मेरा पहले दिन मुझे मिला था, कह रहा था कि यार मिलके कुछ करते हैं। He had a technology background, और उसका कोई पेटेंट्स वगैरह भी थे, तो उसने मुझे कहा यार अवैस, I think there is bigger potential in this than just PPE, क्योंकि मैं मेडिसिन का मेरा वो था, लाइक पहला स्टार्टअप हेल्थ केयर का था, मैं मेडिसिन में करना चाह रहा था, सुपर पैशनेट अबाउट लाइक मेडिसिन, कि यार यही इम्प्रूव करने का। मैं कहाँ फैशन में जाके किसी कपड़े फिटिंग कर रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट। बट he convinced me कि यार the technology is super cool, इसका eventually medical use case भी हो सकता है, because you could see how your body is forming, what the fat content is, fitness वाली साइड पे हम निकल सकते हैं। बट आई थिंक जो इनिशियल वो है वो PPE से बाहर है, इट्स मोर इन फास्ट फैशन, राइट। लेट्स थिंक अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देयर। तो वहाँ पे बेसिकली वो जो the idea, the solution converted into a business. Yes. And what were the roles? Because initially there were like 3 people. Yes. How did you divide the roles, or कि कौन क्या कर रहा है? Again, it's a software startup, so is everybody working on the product? ये क्या सीन है? यार इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब कुछ ही कर रहे होते हो, यू आर वेयरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैट्स, राइट। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस था वो टेक्नोलॉजी में था, तो मैंने टेक्नोलॉजी इनिशियली बिल्ड करना शुरू कर दी विद माई CTO. And what, like,
क्योंकि आपका इनिशियली जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था वो तो लार्जली हार्डवेयर में था. मैं भूल गया था, मैंने क्या भूल जाओ इसे. Yeah, you're right. But उसमें भी focus था a bit of software as well. Okay, so you had the software a little bit, at least starting point, जी. and that's what you brushed on because this was a purely software जी. as a service of sorts, right? Yes, absolutely. Interesting. So the company started a year and a half after, like once you graduated from the institute? हाँ जी. नहीं, not a year and a half. During the institute तो मैं Germany गया हूँ 2017 में, right? और 2018 के end तक we had the company. Interesting. Yeah. When did you, from the time you had the company till the time you sold it off to Facebook or Meta as they now call it, tell me about the evolution, what happened, and how did Facebook end up buying a company that was making PPE, fitted PPEs. You know, what was the evolution there? Okay, great. I think maybe आपका पिछला question, I don't know if I answered about the roles. Yeah, अगर वो भी आप करते हैं detail में, कि you said कि everybody, we were wearing multiple hats, everybody was working on everything, but was there any particular lead? होता ना कि जिस तरह एक startup है तो startup में everybody is doing everybody, but sometimes you at least divide the leads on something कि ताकि responsibility at least हो. Yeah, of course. वो natural transition हो गई थी, क्योंकि मैंने पिछले startup में I did a bit of sales, I was super passionate about building processes or all of that stuff. I did that a little bit as well, so I could go into a commercial role. मतलब मैं CEO वाली side पे जा सकता था, but मेरा जो एक और co-founder था, he had a lot of he was fit for that market, Germany के commercial role के लिए, because he was German, right? And he was very well integrated into the market. So it was very natural कि वो वहाँ चला जाए. Right. मेरा personally reflecting on that, मेरा जो दूसरा skill set था was complex technologies को encapsulate करके usable products बनाने में था. Right. And I was really passionate about thinking about whys, कि हम बना क्यों रहे हैं, कैसे जाएगा सब कुछ. तो I eventually moved toward product. Right. I don't know Pakistan में कितना ये role explored है, but I was the CPO, Chief Product Officer. तो मैं product strategy बना रहा था, development देख रहा था, आगे reporting, customers के all of that, वो चीज़ देख रहा था. My second co-founder was the CTO, completely technology development में with me, and then we had a commercial person जो कि sales, fundraising, all of that stuff वो कर रहा था. Right. That's what I did. A little bit of clarification, pre-size eventually turned into not just PPE, but we turned into fast fashion. So for example, अगर आप product को explain करूँ तो वो ये कि for example अगर आप Zara की website पे जाएँ, वहाँ पे एक button नज़र आएगा आपको, find me the right size. Right. आपने ये hoodie देखी या shirt देखी और वहाँ पे आपने button पे click किया, Zara की website के ऊपर ही there would be prompt which would say कि यार हमें अपनी थोड़ी सी information दे दें about your body. और आप अगर फ़ोन पे हैं तो फ़ोन आप अपना ज़मीन पे रखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, एक दफ़ा घूमेंगे, इन 5 seconds 10 seconds आपका पूरी बॉडी का 3D मॉडल हमारे पास आ जाएगा. एंड देन वी वुड टेल यू कि यार इस शर्ट का साइज़ ये है. और वंस वी हैव योर बॉडी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड क्लोथिंग अगर आपने कहीं से बनवानी है वो भी आप बनवा सकते हैं. बट eventually like हर Zara के ऊपर सारे products fitted to your body वो आपको नज़र आएंगे and you could buy perfectly fitting clothes. आप लोगों की जो towards the end of it, who were some of the clients that you were working with? Like कहाँ पर ये product actually, अगर मैं B2C की बात करूँ तो consumers कहाँ पे interface कर रहे थे with this product? हम B2B2C थे, जिसका मतलब ये है कि हम लोग businesses को बेच रहे थे और हमारे clients were H&M, a bunch of really big brands in Germany. We had 2 million active users monthly and 100 million recommendations. और वो होता क्या था? API कॉल पे होता था कि बेसिकली उनकी वेबसाइट पे आप इंटीग्रेटेड हैं, कस्टमर जब उसको यूज़ कर रहा है तो वो पीछे API कॉल ये सिस्टम ने डिफाइन करके वापस भेजें पैरामीटर्स और वो फिर उससे कंपेयर कर रहा है. Exactly. इस पूरी कॉम्प्लिकेशंस को अगर आप सिंप्लीफाई करें, हमारा प्रोडक्ट बन के गया था. लेट्स से मुजम्मिल का अपना फैशन स्टोर है. मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मुजम्मिल ये इंटीग्रेट कर लें, आपके कस्टमर्स का ये ब्ला ब्ला होगा. We would just tell you, Muzamil, put this button on your website. We put it for you. आपको कोई technical कुछ करने की ज़रूरत नहीं, and you would make 10% more money. Okay. And we were proving it. बड़े clients जिस तरह H&M, उनके साथ we were proving it. Right. I don't know if I can name a lot of these clients because it's different. But we were proving it कि यार आप डालें
बटन डालें और आपके पैसे ज़्यादा बन रहे हैं. आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कैसे बन रहे हैं, हम आपका करेंगे. वी डू अ बंच ऑफ मैजिक बिहाइंड द सीन्स. और एज एन एंड कंज्यूमर आपको क्या मिल रहा है, आपको वो इंटरफेस मिल रहा है जो ज़ारा की तरह का दिख रहा है. सो आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसे, राइट. यू डोंट नीड टू बी लाइक ओ थर्ड पार्टी कोई ऐप है जो मेरा डेटा ले रही है बॉडी का ब्ला ब्ला. यू वर सुपर ट्रांसपेरेंट. जर्मनी में थे तो डेटा प्रोटेक्शन GDPR का सारा करके वी कुड टेल यू कि यार अच्छा मुजम्मिल दिस इज़ व्हाट वी थिंक वुड फिट योर बॉडी बेस्ट. स्टाइलिंग में जा सकते हैं, फिर वर्चुअल ट्राई-ऑन्स में जा सकते हैं. हम बात कर रहे थे उसके बारे में. And how are you making money on every call or No, we would say that we increase your revenue and we take a share of that, so commission. Interesting. Yeah. Interesting. And so we're pretty aggressive with that. So you don't make money unless they make money. Yes, we're pretty aggressive with that. कि यार हम कोई पैसा नहीं बनाएंगे. We are हम prove करेंगे our value. And I mean, maybe we could jump into the acquisition process. और उसके बाद maybe I will share my thoughts on why I think we got acquired. Meta ने तो मैं नहीं बताया कि क्यों खरीदा है, but okay, what was the actual acquisition? The rationale behind the rationale behind it. So tell me about the acquisition. How did it happen? And particularly the thought process in the founding team. When a big name is looking to acquire. तो क्या सोच होती है? बंदा ये भी सोच रहा होता है ना कि यार नहीं भाई हमारा सीन है, हमें उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश की है तो हम तो 4 साल बाद, वो स्नैप के साथ नहीं होता इनफेमस के तो नहीं $3 billion $4 billion की फेसबुक ने एक्विजिशन की ऑफर मारी और उन्होंने कहा नहीं जी हम खुद बनेंगे और $100 billion कंपनी बनेंगे. So what was it like for you guys? Yeah, we were making decent money, I would say. I think I can't share a lot of figures, but making a lot of like decent revenue. We were growing quite a lot क्योंकि हमने PMF like we hit product market fit. हमारा हम जो value claim कर रहे थे वो हम prove करना शुरू हो गए, right, on multiple tens of like hundreds of clients. हम कह रहे हैं कि यार आप 10% ज़्यादा revenue करेंगे एक बटन लगाने से, crazy, right? और कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और हम नंबर से प्रूव कर रहे हैं उनके अपने नंबर से ही. जब इतना एग्रेसिवली हम उनको डेटा ड्रिवन प्रूव कर रहे हैं तो हम बेसिकली पब्लिश भी कर रहे हैं ये चीज़ें. आई बिलीव अराउंड दैट टाइम एक्विजिशन की बात स्टार्ट हुई थी 2021 में. हम एक्वायरर नहीं ढूंढ रहे थे, हमारा बिज़नेस अच्छा जा रहा था. वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंट्स, आई थिंक आई कैन नेम देम बिकॉज उनका केस स्टडी भी थी वेबसाइट पे, H&M. वो यूज़ कर रहे थे एक स्टार्टअप जो कि 10 साल पुराना था विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी. दैट वाज द ग्लोबल लीडर, राइट. आई थिंक दैट वाज वर्थ $1 billion उस टाइम पे. और वो यूज़ कर रहे थे और हमने H&M से कहा था कि यार हमारा आप जो ना लाइक आप व्हाट्स द हार्म इन दैट, लाइक आप कर लें टेस्ट, हम आपको सारा सेटअप कर देते हैं. जीरो कॉस्ट थिंग एनीवेज. हम सेटअप कर देते हैं, आपको पैसे नहीं देने अगर हमने ना आपका इम्प्रूव किया. और आपने 5 साल पहले किसी ने डिसीजन किया था, वो छोड़ के भी चला गया कंपनी, तो आप टेस्ट करके देख लें कौन सा बेहतर है. अच्छा, वी वर वे बेटर than that company, which was I think worth $1 billion उस टाइम पे. Please don't quote me on this, but I think it was around that. और I think H&M was paying a shit ton of money उनके लिए. और उन्हें रियलाइज़ हो कि यार एक छोटा सा स्टार्टअप म्यूनिक से ये कर रहा है और which is way better. और वो हमने केस स्टडी हर जगह डालना शुरू कर दी, H&M ने भी डालना शुरू कर दिया आई थिंक. और उस टाइम पे आई थिंक PVH उसका नाम है होल्डिंग का, वो टॉमी हिलफिगर और कैल्विन क्लाइन होल्ड करते हैं. उन्होंने भी एक केस स्टडी की विच वाज लाइक मार्केट का एनालिसिस ऑन के यार प्रोडक्ट्स जो कि साइजिंग और फैशन में काम कर रहे हैं उनका एनालिसिस उन्होंने किया. और वहाँ पे आई थिंक वी वर top 1 or 2 आउट ऑफ द लाइक ग्लोबल मार्केट जो थी इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, राइट. वो चीज़ जब हुई तो आई थिंक वी वर मेटा के रेडार पे आ गए. मेटा के नॉर्मल M&A प्रोसेस होता है जिसमें M&A की टीम, मर्जर एंड एक्विजिशन की टीम होती है जो कि यूजुअली रीच आउट करती है फॉर एक्विजिशंस. लेकिन हमें आई थी किसी सीनियर डायरेक्टर की, राइट, AI में सीनियर डायरेक्टर थी, उसकी ईमेल आई थी डायरेक्टली. और उसने कहा था कि यार आई वांट टू टॉक टू यू, राइट. हमें तो पहले लगा फेक है, राइट, मतलब मेटा के डायरेक्टर हमें क्यों मैसेज करेगा. तो वी जम्प्ड ऑन द कॉल और हमें वहाँ से पता चला कि यार अच्छा, उन्होंने सवाल करना शुरू किया वेरी डायरेक्ट. देयर लाइक यार डेटा कैसे आ रहा है, ट्रेन कैसे कर रहे हो मॉडल्स को, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो.
वी वर लाइक यार ये तो चूना लगा रहे हैं मतलब ये तो उन्होंने डेफिनेटली लाइक इन्होंने बनाना चाह रहे हैं अपना कुछ और हमें नज़र आ रहा है कि यार ये तो दिस इज़ नॉट गुड लाइक आई टोल्ड यू माय सीटीओ टॉमी उसका नाम है वो बड़ा लाइक ही हैज़ दिस पर्सनैलिटी वेयर ही इज़ वेरी एग्रेसिव समटाइम्स लाइक आउटलुक वाइज ही इज़ सुपर नाइस गाय super smart guy, very committed. और उसने डायरेक्टली उसे बोला कि यार ये look, we think you're gonna steal your tech और we don't want to talk to you. It's like यार बंदे में you know like मतलब मेटा को बोलना उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वो चाहिए exactly. तो I was like यार ये dumb move है या फिर it's gonna pay off और उन्होंने कहा okay fair ठीक है you don't want to talk to us हम NDA साइन कर लेते हैं और हम आपको यूज़ करना चाह रहे हैं for Instagram or something ठीक है कुछ नहीं बताया क्यों कैसे क्या और उन्होंने कहा हम यूज़ करना चाह रहे हैं आपका सर्विस यूज़ कर लेंगे हमने कहा चलो यार that would be insanely good for us the numbers that could potentially start coming in would be phenomenal right? exactly करते करते bunch of talks उन्होंने हमें कहा कि यार किसी को नहीं बताना अपने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं बताना हम अपने एम्प्लॉयज़ से भी छुपा रहे हैं उस वक्त हम 50 लोग हो चुके हैं एम्प्लॉयज़ से भी छुपा रहे हैं कि यार क्या हो रहा है उनसे हम सीक्रेटली टॉक्स कर रहे हैं आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन इन आवर ऑफिसेज और उनसे ये बात हो रही है वो कह रहे हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता डाइविंग डीपर इनटू के यार हाउ इज़ द कंपनी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट आपने कैसे बनाया आपने प्रोडक्ट कैसे बनाया वो सारी चीज़ें डिस्कशन हुई and eventually they said okay we want to buy you right or that was a very interesting discussion when they said they want to buy us क्योंकि we were on this spectrum like 3 लोग हैं तीनों divided हैं one wants to really sell I am somewhere in the middle or one doesn't want to sell at all right bunch of reasons why someone would sell you get money out of it that's one of the biggest ones like as a founder as an entrepreneur how do you make money eventually आप salary ले सकते हो but ये shares जो hypothetical values होती हैं of value of a company वो realize तब होती हैं सिर्फ when someone buys your shares या वो बड़ा bigger fish आती है या something called secondaries कि कोई और आके share आपके खरीद लेता है तो हमें लग रहा था कि okay this could be a good exit I mean eventually हमने exit करना ही है if it's a good price तो we would jump into it why not दूसरा ये कि personal branding हो जाएगी people who sold to Meta insane right Germany में I think okay again please don't quote me on this but this was a fact that was pushed to me quite a lot इस negotiation में कि Germany में I think there was second company in the history of Germany that has been sold to Meta it could be financial outcome आपके लिए personal branding आ जाती है the third thing that was pushed to us was Germany में Meta का engineering office नहीं है it was just a sales office I think पाकिस्तान में भी ऐसा ही है जहाँ पे वो आपको ads run करने में help करते हैं it was more like business development but engineering office नहीं होती engineering नहीं होती even though Germany is such a big developed country तो उन्होंने pitch किया कि यार आपका office जो है ना वो German hub बन जाएगा for engineering for Meta it's a big privilege for you right आप उस चीज़ को build करेंगे office को you would hire people and you would build this into this huge hub think of the experience you would have उन्होंने कहा okay product integrate होगा Meta में you would get a decent amount of money आपकी personal branding होगी and you get to build an office Meta I was like okay great argumentation but again I think for us it was I think I'm really proud of this कि हमने उन्हें pushback दिया कि यार why do you think कि we know कि why Meta is great for us but why do you think we are great for you हमें strategic alignment चाहिए क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि आप acquire करें office बंद करें product बंद करें and done because हमने जिसलिए शुरू किया that's something different because we think there's a lot of potential इस चीज़ में right we can grow this हमें नज़र आ रहा है अभी हमने we've started making money we've proven our value quite a lot तो हमें लगता है कि we can now push this globally right why should we sell to you and I think they had great arguments कि यार हमारा strategic vision जो है we are building an e-commerce platform whatever within Meta और ये चीज़ बहुत अच्छी उसमें फिट होगी क्योंकि आप सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे होगे but you're building the whole experience और फिर they actually did that when we got acquired. Would the acquisition have meant that you would have stopped selling to third parties that were already using your products? Yes. So I think I can now say that क्योंकि we were not allowed to say that before लेकिन we had to funny thing आप
like I was reporting to our customers कि यार oh everything's going great, you're making more money. We signed the acquisition offer. Next day they told me कि यार आप cancel करें contracts क्योंकि you know we don't want you to sell this anymore. We want this for ourselves. हाँ, for ourselves क्योंकि हमारा different vision है. And it was really funny that I had to go back to these customers and tell them, oh remember मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि you're making so much money. We have to cancel contracts, लेकिन without telling them a reason why, which is very interesting. मतलब उनके लिए कंफ्यूजिंग होगा ना कि यार भाई हम भी पैसे बना रहे हैं, तू भी पैसा बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, क्यों छोड़ रहे हो, ये चस्का चढ़ा के क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या सीन है? Yeah, that's true. And did like obviously वहाँ पर वो हुआ होगा कि यार पैसे ले लो, क्या सीन है? Yeah. But you had to just say, listen, like it's not you, it's me. exactly. यार हाँ. It was a lot of negotiating back and forth. What I had to do was like हर कस्टमर का, क्योंकि हम cater कर रहे थे for a very wide audience, और हर कस्टमर का I had to understand कि क्या offer कर रहे हैं उन्हें, and I had to look at every competitor जो कि उनको fit होगा, and I had to be the matchmaker in the middle. मेरा argumentation ये था कि मुज़म्मिल हम strategic reasons की वजह से बंद कर रहे हैं, but I found the perfect match for you, और मैं अब उसको भी convince कर रहा हूँ कि यार भाई कस्टमर ले ले, तेरा अपना टाइमलाइन चल रहा है बट ले ले प्लीज़. और मैं उसको भी नहीं बता सकता कि क्यों बंद कर रहा हूँ मैं. तो which was interesting times, but we made it through. Interesting. And you joined Meta as a product manager at the focused on this particular product, or? यार हाँ, हम लोग थोड़ा सा broad चले गए थे, और हमारा बेसिकली मेरा जो गोल था वो ये था कि यार इस प्रोडक्ट को मैं इंटीग्रेट करूँ राइट मेटा में, बट ऑल्सो टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि यार पूरा हाउ वुड दिस विजन कम टुगेदर, राइट? सो वी वर अ पार्ट ऑफ लाइक अ बिगर बेट, लाइक आई टोल्ड यू, अगेंस्ट एप्पल. हम कोर मोनेटाइजेशन में थे जो पैसा बना रही थी कंपनी का. तो हम थोड़ा ज़रा स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले गए थे, बट इस प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए. Makes sense. And you guys essentially that vision was actualized के the hub of Meta in Germany was originally Precise. Yes, yeah, absolutely. That holds true to today as well? Yeah, it holds true. अभी बिल्कुल. What's the headcount for the Meta employees there now? I think I can't share a lot of that. क्योंकि मुझे भी I left Meta. I started working in Meta. I think I'm jumping ahead. We just opened an office. हमने announce किया. We got a pretty big building वहाँ पे, और हम अब startups को भी I think incubate कर रहे हैं. हम कह रहा हूँ मैं, but now them. But yeah, I think I don't want to miss. There's a lot happening there. Yeah, there's a lot happening. But वो चीज़ बन गई है कि we've now brought Meta into the German ecosystem, जहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी अच्छी है. जिस तरह अगर आप देखें कि स्टैनफोर्ड क्यों इतनी कामयाब है, क्योंकि इंजीनियरिंग ऑफिसेस साथ हैं. तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन थे अराउंड दैट, बट मेटा नहीं था. तो वी वांटेड टू ब्रिंग इन द लास्ट पीस. Right. तो it was a great privilege कि हम कर सके उस चीज़ को. Makes sense. Yeah. थोड़ा सा मैं कैमरे का रुख बदलता हूँ. Yeah, sure. I want you to take off your German hat that you've been wearing for the last 4-5 years. 6 years. Did you get the passport yet? नहीं यार, अभी नहीं. मैं language नहीं सीख रहा हूँ. Yeah. अच्छा. So take off that hat. Wear the Pakistan hat. The hat that you were wearing the day you left Pakistan. Right? And so now channel that kid, probably what, 6 minus 20, 22-year-old kid, you know, who's failed in life, whose family has debt, and they're taking a bet on you, taking a bunch of loans left, right, and center. And एक तो ये ना कि हाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या पैसे दरकार है, और उसी के साथ साथ ऑल्टरनेटिवली मेरी फैमिली की अपनी सर्टन डायनामिक्स है, जिन डायनामिक्स को मैंने भी जिया और मेरे छोटे बहन भाई भी जी रहे हैं और मेरे पेरेंट्स भी जी रहे हैं, राइट? तो पहले तो मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाके मैंने $1200 यूरोस कमाना शुरू किया. उसमें से मैंने कुछ फैमिली को भेजना शुरू कर दिया. फिर प्रीसाइज हुआ, सक्सेसफुल हुआ, प्रीसाइज में एक तनख्वाह होगी, व्हाटएवर. फिर उसके बाद मुझे एक तो एग्जिट के ऊपर कैश मिला, और फिर उसके बाद मैं जब मेटा में प्रोडक्ट मैनेजर लगा, तो मेटा की आई एम श्योर सैलरीज विल बी मच मोर जूसियर देन व्हाट प्रीसाइज वाज एबल टू प्रोवाइड यू इन लिeu ऑफ सैलरीज. सो मैंने वो 1-1.5 साल उसका भी गुजारा मेटा का. एंड अभी रिसेंटली आई एम बैक इन पाकिस्तान, नाउ अ वेरी डिफरेंट पर्सन एंड अ डिफरेंट डायनामिक ऑल टुगेदर.
How has a lot of that changed, do you think? The perception of, and I want to talk about the public. I don't want to talk about, Awais, the star who was a failure, वो अब किस तरह emerged करा. I want to talk about on a very human, personal level, your friends and your family, particularly your family. How have those dynamics changed? And in terms of you sort of coming back, being the eldest son, the dynamic of the family, your father's retired. Yeah. How has that changed now? Financially, you're much different. Yeah, I mean, as you can expect, it's changed quite a lot. Alhamdulillah for the better. I mean, जब मैं, when I told you I was depressed, I was at a lowest point. जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ बोली थी वो यही थी कि यार मायूस नहीं होना, क्योंकि वक्त बदलते हुए थिंग्स चेंज वेरी क्विकली, राइट. वक्त बदलते हुए पता नहीं चलता, और हर किसी का जो किस्मत में लिखा हुआ है वो मिल जाना है उसे, गिवन कि वो बंदा मेहनत करे और उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करे. तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउड ऑफ दिस, कि what I've achieved. Obviously I think it was a funny discussion, like उनको I think they didn't realize कि what meta acquisition meant, और बंदा Facebook पे करता भी क्या है. Were they so were you onboarding them every now and then कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा कंपनी स्टार्ट कर दी है, अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है. Did your siblings understand? Because पाकिस्तान में मुझे पता ना, so when my siblings went and started working in the big tech, तो जो यंग होते हैं ना उनको होता है, वो अपने दोस्त को बताते हैं कि ब्रो मेरे भाई ने ये कर दिया, तो उसकी एक मेडल होता है. Did your siblings understand? Did you have those conversations? And eventually when you did sell, again, how did that change the dynamic? I think the dynamic changed quite a lot. मतलब I am a very private person. I think I'd like to be. तभी मैंने the second time when this happened, I didn't really capitalize a lot on the PR and the media, because I was like, यार जो करना था वो कर लिया, alhamdulillah. That has changed quite a lot financially. I mean, we're in a better situation. Obviously, मेरा भाई भी मैंने आपको बताया, he's mashallah in Munich. तीसरा भाई भी जो है वो भी जॉब कर रहा है. वो किस स्पेस में? He's actually in media, I would say. I think design, media, and all of that stuff. So things have changed quite a lot. I mean, I think one thing that have changed is like people know me a little bit more, I would say, from this context of pre-size. Dynamics have changed quite a lot, I would say. But I would say maybe in terms of relationships, again, मैं context build करता हूँ. आपने initially एक बड़ी चीज़ बोली थी कि रोटी कपड़ा मकान. Actually, so I wanna sort of channel the Maslow's hierarchy. मैं भी ऐसी सोचती हूँ. You're right. Family. Now you are growing up in an environment where there was a financial stress at all times, and the worry of मैं कर रहा हूँ, scholarships हैं, कुछ भी करना है तो करना है, और अब्बू का हाथ बैठाना है. You're the oldest, तो मुझे पता है कि my older siblings were like that, right? बट डायनामिक इस तरह बदलती है कि जो आपका सबसे छोटा होगा प्रॉब्ली, वो फिर उसके लिए वो फाइनली एटलीस्ट सिक्योरिटी ये वाली आ गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड देन दोज डायनामिक्स चेंज. सो उस मैस्लोज हायरार्की वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर हाउ डू यू थिंक द फैमिलीज डायनामिक हैज चेंज्ड? दैट हैज चेंज्ड quite a lot in terms of that. Like हम उस obviously mentality से निकल चुके हैं a little bit, right? उसी में self actualization भी है in the pyramid, right? You can now self reflect and think of what you would like to do for yourself and for the society. तो I feel like कि मैं थोड़ा सा उस जगह पे चला गया हूँ. I think one of the reasons why I wanted to come to your podcast was कि यार मैं पाकिस्तान में कुछ कर सकूँ, right? Germany में I've already started doing this. Like I'm helping founders right now, helping people build companies, and left, right, wherever I can help in whatever capacity, right? But क्योंकि मेरा context वो वाला बन गया, I have that network, मुझे नहीं पता कि how can I channel that and to do better for Pakistan. But I really want to do that. क्योंकि मेरा नेटवर्क वहाँ पे मैं जानता, तो I sort of like try to kind of focus there a little bit. But I wanted to sort of use your channel, your medium to kind of
maybe discuss that or voice that कि यार I would like to find a way कि यार मैं किसी तरह से यहाँ पे भी कर सकूँ. Interesting. Yeah. If I were to sort of expand in this Yes. particular conversation, I'll start off with something very simple. You did something in Pakistan, didn't work. Obviously, you were younger as well, didn't have the exposure. Then you did something in Germany, it worked. Yeah. If I were to ask you in a very simple way, you graduated from Nust. Nust produces a lot of startups now, one way or the other. I remember I had a very smart kid come on the show, Ahmed. He's running the startup called Inlights. Okay. And what he's doing generally is बड़ी सिंपल सी चीज़ कर रहा है, दुनिया भर में वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है. उसने लोकल पाकिस्तानी स्टाइल से करना शुरू कर दी कि आपके जो इशारे हैं उन इशारों को आपने ऑटोमेट करना है बेस्ड ऑन दी ट्रैफिक, राइट? तो वो भी इसी तरह है. आई थिंक इज आइदर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और वन ऑफ दोज. एंड व्हाट ही इज डूइंग इज कि जी वो जो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं वो उनको यूज़ कर रहा है, वो रन टाइम पे आइडेंटिफाई कर रहा है और वो इशारों को स्मार्ट कर रहा है इन अ मच चीपर वे. अगर आप बाहर की टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं. वो लोकली कर रहा है और करके वो जो है वो एक तो वो लोकली कर रहा है, प्लस में उसने एडिट कॉन्टेक्स्ट डालना शुरू कर दिया कि द कैमरा कैन आइडेंटिफाई कि देयर इज एन एम्बुलेंस कमिंग, सो इट स्टार्ट्स टू रियलाइन द ट्रैफिक इन अ वे दैट इट ऑप्टिमाइजेस द एम्बुलेंस इज एबल टू पास. अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ. और उसका ये है कि मुझे पर्सनली, मैंने आई स्पोक टू हिम एज वेल एंड आई वाज लाइक लिसन you're in school right now and he's getting a lot of CDA आया, प्रेस एक तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, फिर CDA आया. CDA ने आके उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया, इशारे वगैरह दे दिए, सारा कुछ है. बट मैंने उसको यही बोला था ऑफ कैमरा, मैंने कहा यार लिसन you're a very smart mind, ये आता है और ये चला जाता है और जब तुम ग्रेजुएट करोगे ना तो you will begin to realize कि यहाँ पर just the scale, the grandeur that you're beginning to experience now, where people take you more seriously than the average kid your age, that will come and that will go, and that is not what makes you. It is the innovation that, unfortunate as it may be, you might not be able to find a lot of that in Pakistan, and you may have to go elsewhere. मैं कह रहा हूँ अगेन, मैं नहीं रहा yes or no, but you know वो एक हिस्ट्री से बंदा सीखता है. फिर इसी तरीके से डे आफ्टर टुमारो देयर इज अनदर स्टार्टअप कमिंग इन, देयर कॉल्ड वायरो. They've built AI thingamajig with a lot of वो. That I found more interesting because I mean, not to say it, Ahmed is a smart kid and हमेशा मैं उसको पुश करता हूँ. That I found very interesting because वो global markets को target कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के, तो there's a lot of interesting potential there. But again उसमें वो question mark आता है of exposure to the global markets. अभी pump market है AI की, तो it's easy to get the downloads. It's difficult to sustain it as the market begins to drop. In that context, what would you say your biggest learning would be for startups in Pakistan, or rather student-led startups in Pakistan, hoping to go out there and create something? Very interesting thought. मतलब there's a lot जिसके बारे में बात की जा सकती है. You're absolutely right कि जो आपने एग्जांपल दी एक प्रोडक्ट की, you get initial fame क्योंकि it's a big problem, बट उस चीज़ को कमर्शलाइज और एक्चुअलाइज कैसे किया जाए, इस चीज़ को अगर आप डाइसेक्ट करें, सिर्फ उसी स्टार्टअप की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मे बी वी कुड वी वुड हैव अ नाइस डिस्कशन अराउंड दैट. मेरे पर्सपेक्टिव से द फर्स्ट थिंग इज़ प्रॉब्लम डिस्कवरी. मे बी उससे भी पहले अगर आप स्टेप लें तो एक कंपनी में क्या चीज़ होती है, इट्स पीपल, राइट, जो फाउंडर्स होते हैं, बना रहे हैं कुछ. मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि यार मैं कैसे फाउंडर बना, राइट, एंड व्हेन आई नाउ इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, मैं सबसे पहले ये चीज़ पूछता हूँ कि यार व्हाई यू, राइट, और आप फाउंडर बन क्यों रहे हैं, और आपकी टीम क्यों सही है इसी चीज़ को बनाने के लिए, व्हाई आर यू द राइट पीपल, राइट, एंड व्हाट इज़ दिस सस्टेनेबल technological advantage that would make you successful या unique. वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं, but let's start with the founding piece, right? मुझे personally ये लगता है कि why people have to eventually go out or why startups might actually fail in Pakistan is that there is not a lot of focus on founder development
या नॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. हम लोग फाउंडर लेड नहीं हैं, हम लोग आइडिया लेड हैं, राइट? एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन माई एक्सपीरियंस, इन माई लिटिल एक्सपीरियंस, इज़ ideas are cheap, right? Execution really sets you apart. जब हमने start किया था, the market was crowded. आज मैं कहता हूँ कि यार, I don't know, with couple of engineers, you could claim to do the same thing कि यार, मैंने app बनाई है जो video record कर रहा है और size दे रहा है. That's it. It's simple. And जब हमने start किया था, there were 25 people or 25 companies around the world already trying to do the same, pitching to the same investors कि यार हमें पैसे दे दो. जब हमने छोड़ा तो 50 हो गए थे, right? हर यूनिवर्सिटी से भी निकल रहा था. और एग्जीक्यूट कौन करते हैं? इट्स द पीपल, राइट? वो क्यों सही हैं in your constellation of your team to actually build this startup? इस चीज़ पे इतना काम नहीं होता. And I feel like if there is more work on this, we would have more successful companies. जहाँ पे, as when I started the company, it was very like पाकिस्तान में पहला जो मैंने medical startup किया है, करने की कोशिश की, उसमें I didn't have a lot of opportunities. मैं electrical engineering में पढ़ रहा हूँ, मेरे स्कूल में सिर्फ electrical engineers ही हैं जिनके साथ मैं potentially found कर सकता हूँ. उसके अलावा मैं कहाँ से ढूंढूँ founders? Which is rather mind-numbing considering that Nust has everything. हाँ, 7 schools. Right, so there is no collaboration between their own sub-schools. Yeah, there is no opportunity. There could be. Right. There is no opportunity. जहाँ पे वो एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना के, आई मीन देयर इज नाउ उस वक्त NSTP वगैरह हो गया था या नहीं आया था? यार, because my understanding is today now NSTP does cross functional interdisciplinary collaboration. मैंने जो थोड़े बहुत स्टार्टअप्स देखे हैं उसमें यही है कि वो बिजनेस डेवलपमेंट का BBA का बच्चा आ जाएगा और डिजाइन के लिए आर्ट्स में लेटर एट द स्टेज, राइट? आपने मुजम्मिल ने कोई आइडिया ढूंढ लिया, बट आइडिया ढूंढना कैसे, राइट? वो नेक्स्ट स्टेप है. मेरे ख्याल से वही बात है कि आपकी फाउंडिंग टीम कैसी है, राइट? हाउ वेल डू दे वर्क टुगेदर? क्या वो साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्या उनके पास राइट स्किल सेट है? एंड वाई देम? इससे अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो प्रॉब्लम डिस्कवरी है, राइट? कि मैंने बोला कि हम आइडिया लेड है, राइट? हमारे ज़हन में आइडिया आता है और मैं कहता हूँ यार मैं इसके बारे में बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ. बट आइडियाज़ आर लाइक आई सेड चीप, राइट? किसी ने सोचा होगा. आई थिंक व्हाट सेट्स यू अपार्ट is if you are problem obsessed, right? आपने आइडिया के नीचे एक कोर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, और वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? when there's like अगर आप B2C कर रहे हैं, like which means that you're selling to individual customers and users, या आप B2B कर रहे हैं. Munich has a strong B2B culture. मैं खुद भी B2B में I would say my expertise is there. वहाँ पे opportunity हमें मिली कि businesses want to share their problems. वो कहते हैं यार वैसे हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और ये हमारा है, and they want to talk to you. Problem discovery I feel like is a bit, there is a huge gap in problem discovery to idea. हम idea पहले ढूंढते हैं and then we say कि यार let's go out and validate that idea. And there is no I feel like my hypothesis I think I would agree with you. And जो आपने इसमें B2B और B2C वाली बात की है, मुझे उसमें ज़्यादा वैल्यू नज़र आई है. I'll explain why. पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर, जो मैंने ओरिजिनली ऑफ कैमरा भी बोला था कि हमें बड़ा सा आइडिया चाहिए जो कि हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, वो कर रहा है. कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना वी टेंड टू द बिजनेसेस आर वेरी मच behind a big sort of iron curtain. They don't let themselves out. मैं जब भी मेरे बिजनेस के लोग आते हैं तो मैं उनसे पहली चीज़ ये बोलता हूँ कि यार आपका पाकिस्तान में देयर इज़ नो हाउ इट्स मेड कंटेंट. पूरी दुनिया में होता है, फैक्ट्रियों की वीडियोस आ रही होती हैं, हमें तो पता है, हमें तो लगता है पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री ही नहीं है, हालांकि कंज्यूमर आइटम सारा कहीं ना कहीं तो बन रहा है ना, खूबसूरत फैक्ट्रियाँ होंगी. बिजनेस इज इनहेरेंटली बिकॉज हमने वो नेशनलाइजेशन की थी और वो क्या था, तो हम ना भले छुपे ढके बैठे रहे हैं हमेशा से, जिसकी वजह से कंज्यूमर बाहर जाता है तो वो हमेशा डायरेक्ट टू कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है, जो कि इन अ डेवलपिंग कंट्री जहाँ पर मार्जिन कॉल वैसे ही कोई नहीं होती है एंड कस्टमर की पॉकेट जो बाइंग पावर नहीं है, तो आप उसमें ऑलरेडी आप उसका एक लिमिटेड बजट में से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो और उसके ऊपर आप उसमें प्रीमियम ऐड करने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपको वैल्यू प्रॉप देगी. जबकि मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान में एंड द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली वर्क इज अ B2B प्रॉप, बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी दे हैव प्रीमियम दैट दे कैन लेट गो ऑफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन. अब इसके अंदर और उसमें ना इवन अकाउंटिंग बड़ी, इसकी सबसे छोटी मिसाल ये, आई रिमेंबर आई डिड अ स्टार्टअप इन स्मार्ट होम्स 2016 में, डिडंट वर्क, फेल्ड, स्टॉप्ड.
2016 के एंड में one of my a friend of mine came back, or I think it was 2018 actually. Friend of mine came back from the US, Carnegie Mellon graduate. उसके Carnegie Mellon में ही एक और friend था जो कि लाहौर में होता था, तो मैं उसके साथ उसके घर गया. मैंने कहा जी आप क्या करते हैं? उसने कहा जी मैं IoT का काम करता हूँ. अच्छा. मैंने कहा क्या काम करते हैं? मैंने भी किया था तो फेल हो गया. उसने कहा जी मैं करता ये हूँ कि मैं IoT प्रोवाइड करता हूँ टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स. अच्छा व्हाट डज दैट मीन? इसको भी सोचा ही नहीं. मेरे दिमाग में था यार घर के अंदर जो है ना Alexa लगाओ और करो. और उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं थी कि यार लोगों से पैसा निकलवाना कि मैं तुम्हारे घर को स्मार्ट कर दूंगा ताकि तुम्हारी एक लग्जरी हो जाए, वाज डिफिकल्ट. उसने कहा जी मैं जाता हूँ, जाके मैंने देखा कि इंडस्ट्री के अंदर जो उनका बिजली का बिल है वो पता नहीं 10-15-20 लाख रुपया है. तो मैं जाता हूँ, जाके मैं एनालिसिस करता हूँ 360 डिग्री. उससे मैं पहले उनकी सारी लाइटिंग की वो देखता हूँ, मैं और बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ. और मैं उनको डायरेक्ट जब पिच कर रहा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी आप 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, आपका बिजली का बिल मैं 30% रिड्यूस करूँगा, 7 महीने में आपका पैसा वापस, 7 महीने के बाद आपको प्रीमियम है. राइट. सो देयर इज अ डायरेक्ट अकाउंटिंग. जो आपने जितना बोला ना, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ भाई मैं 10% सेल बढ़ा रहा हूँ. राइट. सो सडनली यू डोंट हैव टू कन्विंस द कस्टमर. सडनली यू आर मेकिंग द कस्टमर मनी एंड टेकिंग अ पीस ऑफ दैट मनी. राइट. सो द वैल्यू प्रॉप इज वेरी क्लियरली देयर फर्स्ट ऑफ ऑल. एक तो ये तो B2B वाला was very interesting for me. दूसरा इंडस्ट्री के साथ वो कनेक्टिविटी नहीं, जिसकी वजह से वो जो आइडिया है ना कि यू थिंक ऑफ एन, इसको मैं इस तरह कहूँगा, a lot of people that I speak to who are doing startups are doing startups for the sake of startups. मैं जनरली उनको कहता हूँ I don't want to disrespect anyone, but आपका विजन सही क्लियर होना चाहिए, जिनको मैं आर्टिकल एंटरप्रेन्योर्स कहता हूँ. राइट. सो this was a generation that grew up and saw a bunch of these articles where this guy left his job and now he founded a $200 billion company. Yeah, glamorization. You don't show the hard truth, the real realities. कि यार 95% startups fail होते हैं. Sorry to cut you off, but you're right. Yeah, no, of course. You're right. और जो आप बात कर रहे हो, you're absolutely right यार कि B2B वाला is super interesting. They are behind an iron curtain. और हमने बात की प्रॉब्लम डिस्कवरी की, जो आपने बात की वैल्यू प्रॉप की, सबसे मुजम्मिल मेरे ख्याल से, आई मीन दैट्स वेयर माई एक्सपर्टीज इज विद एज अ CPO, कि हाउ डू यू कनेक्ट कि जो चीज़ आप बना रहे हो वो किसी को रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रही है. और आई थिंक यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा थाट प्रोसेस होने की ज़रूरत है कि व्हाट डज वैल्यू रियली मीन फॉर समवन. मेरे अभी आई एम नाउ स्टार्टिंग अनदर कंपनी इंशाल्लाह सून. मेरी एक any insight on the industry or what area you're focusing on? Yeah, I don't want to talk about the product per se, but I mean, like I said previously, we did technology first, right? हमने टेक बनाई और हमने कहा कहाँ फिट होता है, उसकी limitations हैं, right? अगर वो नहीं फिट हो रही या फिट होगी तो वो एक ही इंडस्ट्री में फिट होगी. I flipped the script a little bit and said, अब I don't have any financial whatever constraints, तो मैं क्या कर सकता हूँ, right? So I'm looking into B2B में ही हूँ मैं. That's my expertise, I would say. मैं sales और recruiting वाली side पे HR automation में opportunities देख रहा हूँ. तो that's something that I don't have the product yet. मैंने team से start किया, we're ideating, but we're now clear that we will start another company. Right. जो मैं पहले बात कर रहा था वैल्यू प्रोपोजिशन की, वो ये थी कि वहाँ पे it's very hard to find कि यार किसी के लिए वैल्यू है क्या. मैं अभी किसी से बात कर रहा था, वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जर्मनी में, हैज़ अ सेकंड कंपनी एज वेल अगेन. उसने मुझे एक बात बोली विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उसने कहा अवैस, अगर तुम किसी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो ना, राइट, मैं मुजम्मिल से पूछता हूँ कि यार मुजम्मिल तुम्हारे दिन में क्या मसले आते हैं, और मुजम्मिल मुझे कहता है ये मसला आता है मुझे, और मैं मुजम्मिल से पूछता हूँ अगर मैं आपका मसला हल कर दूँ क्या मुझे पैसे देंगे? मुजम्मिल कहेगा हाँ ठीक है मैं आपको दे दूँगा. बट व्हेन आई बिल्ड दिस प्रोडक्ट, मैं मुजम्मिल के पास लेकर आता हूँ, वो कहते हैं ओ मसला तो आप हल कर रहे हैं, बट एक्चुअली बाय तो मैं करता ही नहीं हूँ ये प्रोडक्ट. मतलब मेरी तो पूरी टीम है जो कि परचेजिंग से डील करती है. मसला मेरा ही है बट परचेजिंग टीम है. तो उसने क्रक्स उसका ये था कि यार इट्स नॉट लाइक आप यूज़र और कस्टमर को आइडेंटिफाई करना इज़ डिफरेंट. इट्स नॉट जस्ट इनफ कि आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और यू बिल्ड अ गुड सोल्यूशन फॉर इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायर. जिस तरह अभी आपने एग्जाम्पल ली, आई होप इट गोज़ वेल फॉर द गाय जो ट्रैफिक लाइट से कर रहे हैं. I'll actually I'll send him your podcast as well. Yeah. Like Ahmed, because आप लोगों की स्टोरी बड़ी सिमिलर है, दोनों नस्ट के हैं. I'd like to connect him with you if you can mentor him as well. How would help. अगर उस स्टार्टअप की बात करें आप,
देयर इज़ अ क्लियर नीड, राइट? आपने बोला मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें लगते हैं, देयर इज़ अ क्लियर नीड, ही बिल्ट अ सोल्यूशन फॉर दैट. Who is buying the solution? Right? What is their thought process of buying the solution? Maybe you could explain a little bit more. आपने कहा CDA करता है या कोई और करता है या I mean, अभी वो CDA कर रहा है. मुझे उसमें अपसाइड ये नज़र आई थी. मुझे बस कही था कि उसकी इमोशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए. मुझे लगता है पाकिस्तान में इनफ इमोशनल मैनेजमेंट नहीं होती. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपका वो वाला पार्ट था ना, आई कुड कनेक्ट विद इट सो मच. मैं मीडिया में था 2015 में, मेरा पीक हुआ. मैं CNN पे था, BBC पे था, इस पे था, उस पे था. मुझे सब कह रहे थे भाई तू अब दुनिया बदलेगा, तूने तो बड़े बड़े एंकर्स को चुप करा दिया. मैंने ₹1.5 कुछ नहीं किया था, ठीक है. मैंने अपने ठीक है मैंने कुछ किया था, बट मेरे हिसाब स्कोप में मैंने कुछ भी नहीं किया. जस्ट एन ऑर्डिनरी किड. A year down the line, this industry wasn't mature enough for the things that I was expected to do, and I went through depression. And वो जो the acknowledgement that you gave, that I've been very vocal about, is कि यार people do tend to get depressed, and it's the emotional management. And the biggest problem is when you do something, when you're the first to do something, you more often than not do not have mentors that can understand your context. So आपके पास वो basically thought leaders नहीं होते जो कि आपको guidance provide कर सके. Exactly. So the loneliness that you tend to have at the time is just horrifying. तो मैंने भी उसको यही बोला था, क्योंकि मुझे उसमें ये था कि यार I'm not saying you're not going to be successful in Pakistan. But your expectation needs to be very well managed. And you need to have mentors who can guide you on, क्योंकि उसका मुझे वो थर्स्ट नज़र आ रही थी, वो एरोगेंस नज़र आ रही थी जो कि उस जवानी में होती है, जो आप में भी थी, जो मुझे में भी थी, जो आज आती है जब आपको बार बार रिगर्जिटेट किया जा रहा था कि भाई तू किंग है. But in terms of his product, right now it's a singer buyer model. He's in the city. वो constantly वो हर दफ़ा मुझसे मिलता है, वो ये कहता है यार गवर्नमेंट का बड़ा बैड सीन है, गवर्नमेंट का बड़ा बैड सीन है. मेरे लिए his government is a testing ground. उसका real money is in the societies. So the value prop will be when he does traffic management for, let's say, Bahria Town or Blue World City or this or that. There's margin call there, and there is definitely a very clear value prop. Absolutely, you know, urban planning हो रही है, cities develop हो रही हैं, they're competing with each other. It's a capitalist market, and if he can give a cheaper premium compared to the other side, तो वो अभी मसला ये आ रहा था कि he was like to fit ज़बरदस्त जा रहा है तो क्या सीन है. हाँ, पैसे एक्चुअली हम बनाते हैं, जो हमने इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी बनाई है उसको हम आउटसोर्स करते हैं अपवर्क से. ये तो बस हम कर रहे हैं. वहाँ पर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, you know what, like if the economic model does not exist, this is going to be a problem. Yeah, you're absolutely right, Muzamil. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. I think just building on those notes, जो आपने बोला, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल 100% सही बात की. जो उन्होंने भी बोला कि यार गवर्नमेंट का इशू है, whatever. You just need to think from a different angle as well, buyer perspective से, right? Most of the companies fail because हम किसी को बेच रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि उसका मसला क्या है, उसने भी रियलाइज़ नहीं किया मसला, उसका टाइमलाइन नहीं है, या उसका बजट नहीं है, या कोई और बायर है. तो जो आपने बोला मुझे कि यार गवर्नमेंट में बाइंग प्रोसेस हमें नहीं पता, सोसाइटीज़ का आपने मसला भी हल कर लिया, आपने सोल्यूशन भी बना लिया, पेन एग्जिस्ट करता है. वैल्यू प्रॉप आइडेंटिफिकेशन में इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बाइंग प्रोसेस क्या है, परचेजर कौन है, क्या स्टेप्स होते हैं, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से सोचते हैं, and then you build that into the product. That, you know, makes you a bit more, let's say, more attractive. आपकी सेल्स आसान हो जाती है. जिस तरह मैंने आपको बोला कि यार हमें जब पता लगा कि जो इनोवेशन वाले लोग हैं, जो साइजिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं हमें रिटर्न्स आप कम करके दें कि लोग ख़रीद रहे हैं लेकिन साइज़ नहीं फिट हो रहा तो वापस आ रहा है. बट जो डिसीजन मेकर था वो CEO था, ही डिडंट गिव अ शिट अबाउट दिस. उसने कहा यार कंपनी पैसा ज़्यादा बना रही है, ये मेरा गोल है, या कॉस्ट्स कट हो. तो उसको लाइक टू मेक द बाइंग प्रोसेस ईजियर हमने उसको रीफॉर्मेट किया इनटू सेइंग कि यार बटन लगाओ 10% और रेवेन्यू कर लो. एंड दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सजेस्ट कि यार आई थिंक हमारा माइंडसेट नीड्स टू चेंज अ लिटिल बिट इन दिस, कि जब आपने फाउंडिंग टीम पे ज़्यादा काम किया, आपने प्रॉब्लम डिस्कवरी पे ज़्यादा काम किया, हमने आइडेंटिफाई किया कि देयर नीड्स टू बी एक्सेस एबिलिटी के यार लोग आपसे ओपन हो कि यू कैन कॉल अप मुजम्मिल एंड से कि यार मुजम्मिल आपके क्या इश्यूज़ हैं आपकी कंपनी के, सो आई कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स.
एंड वंस you've done that, मुझे मुजम्मिल का एक्सेस हो कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कि मुजम्मिल चीज़ें खरीदता कैसे है, राइट? एंड इफ आई अंडरस्टैंड दैट, मैं उसको अपने वैल्यू प्रॉप में, अपने प्रोडक्ट में बिल्ड करके देन आई वुड लाइक मुजम्मिल। I think there's a certain level of collaboration within that. 100%. वो जो आपने कहा ना कि हमारे यहाँ I mean वो एथिक्स की भी बात है, वो उस चीज़ की बात है कि जितना आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखोगे ना, आप नहीं कर सकते। देयर इज अ कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड वेयर यू ट्रस्ट कि यार मैं थर्ड पार्टी को ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और दे विल कम अप विद अ सोल्यूशन एंड दे विल हेल्प मी आउट। हमारे यहाँ कॉन्स्टेंट ये होता है, वो बड़ा मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगता है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आइडियाज़ और चीफ। हमेशा ना हर बंदा अपने आइडियाज़ छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस तरह पता नहीं यू नो वो तो $1 बिलियन उसके आइडिया में। तो मेरा ये होता है, वेरी ओपन विद माई आइडियाज़। मैं कोई नई चीज़ करता हूँ, इंडस्ट्री के दूसरे लोग होते हैं, मैं कहता हूँ यार मैं ये सोच रहा हूँ, ये थॉट प्रोसेस है, मैं ये कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये समझ आ चुकी हुई है कि यार अगर उसने करना है ना तो इट्स नॉट जस्ट द आइडिया, उसकी एग्जीक्यूशन तो मुझे ही पता है। जो यूएसपी है वो आपके दिमाग में, वो मेरे दिमाग में, हाउ टू बिल्ड यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपने कैसे उस आइडिया को फ्रॉम एन आइडिया टू एक्चुअल रियल प्रोडक्ट आपने बनाना है। हाँ, बट इसमें इफ आई वर टू आस्क यू टू जूम आउट, आपने कहा थॉट प्रोसेसेस का फर्क है। मैं थोड़ा सा ना बेसिक फंडामेंटल्स पे आता हूँ। व्हाट डू यू थिंक इज द स्टार्टअप? बिकॉज पाकिस्तान में ना व्हेन आई और ये एम्बिगुअस है, ये ग्लोबली भी स्टार्टअप की टर्म इज एम्बिगुअस, देयर इज नो डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ इट। But Pakistan, you go to incubators, they'll give you a different definition. You go to VCs, they'll give you a different definition. The industry, the ecosystem will give you a different definition. And then you've got like people on Instagram, like मुझे लोग message करेंगे, sir, I am doing a startup and you know here is my leather wallet, I want to send it to you and send it to you, right? So, so how would you define a startup? You're very hard to define, to be very honest. I think it can be very broad. मतलब आप किसी भी चीज़ को startup कह सकते हैं. I think like a couple of people trying to solve a problem. कुछ बना रहे हैं. Okay. Personally, the way that I would define it is what you said. I don't know about couple of people, one person, 100 people. I would say solving a problem. Yeah, okay. Yeah, right? That's actually a better definition. जिस केस में अगर मैं सॉल्विंग अ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर कोई आके मुझे एक वॉलेट बेच रहा है तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, मेरे लिए वो एक बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है. नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, बट अगर वो 50 और लोग वॉलेट बेच रहे हैं और तुम भी वॉलेट बेच रहे हो, तो इट्स जस्ट लाइक सदर में एक और आपने शर्टों की दुकान खोल ली. हाँ, सही. क्योंकि इतनी वो वेरी डे, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, इट्स जस्ट व्हाट यू पर्सनली, हाउ वुड यू, हाँ, पर्सपेक्टिव आप किस तरह डिफाइन करोगे ताकि आप कन्वर्सेशन को उस तरह लीड कर सकते हो, राइट. द वे दैट आई वुड डिफाइन अ स्टार्टअप इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. मुझे जो मसला आ रहा है ना पाकिस्तान में, आई वांट योर थॉट ऑन दैट. Because our article on entrepreneurship हुई है, because startups historically solving a problem has not been our core forte. हम जनरली बाहर से किसी को बुलाते हैं और कहते हैं यार हर किस्म का मसला वही सॉल्व करके देगा. जब मैं 2014-15 around the time when you were getting in the space as well, तो होता ये था कि स्टार्टअप की एक डेफिनेशन हमारे सामने आई, जो इंक्यूबेटर्स भी वही करते थे, इन्वेस्टर्स भी वही करते थे. लार्जली ये वो लोग थे जिनका $1.5 का कोई एक्सपीरियंस नहीं था विद एनीथिंग. दीज आर ऑल्सो पीपल हु रेड अप के गोरे ने सिलिकॉन वैली में क्या किया है, तो वो पाकिस्तान में वो एग्जैक्ट सेम फार्मूला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. और वो ये कह रहे थे कि स्टार्टअप सिर्फ एक चीज़ होती है, और वो ये होती है कि आप एक हाईली स्केलेबल चीज़ बनाते हो जिसके अंदर इन्वेस्टर का बहुत अच्छा पैसा आता है, और फिर इन्वेस्टर जो है वो 3 से 10 साल के दरमियान में उस पैसे को मल्टीट्यूड्स ऑफ फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करता है और वो ले जाता है. और वो बहुत रिस्की होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट दैट इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप. एंड दैट वाज थ्रोन अराउंड एंड टॉट, एंड जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ द आइडियाज दैट वर मच मोर सेलेबल but they were let go because of the size. A lot of the ideas that were much more sellable were let go because the lack of scalability. And a lot of ideas were let go because the model was कि आपने investor के पास जो जाना ही जाना है, और आपने एक valuation game में घुसना है, और आपने दिखाना है, और आपने $1 billion होना लाजमी है. The term unicorn was thrown around like a basketball, जिस पे मैं क्यूरियस होना शुरू हो गया कि इन अ कंट्री जिसकी टोटल GDP $300 बिलियन है, उसको क्या ऐसा चस्का चढ़ा हुआ है कि यार मैंने $1 बिलियन कंपनी बना. मतलब व्हाट इज़ दिस वैनिटी मेट्रिक? यानी कि एक बच्चा है मेरे पास आ रहा है, कह रहा है मैं फूटी कौड़ी नहीं कमा रहा, या तो मैं $1 बिलियन कमाऊंगा या मैं $0 कमाऊंगा. दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, राइट? देयर इज वैल्यू प्रॉप इन 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन. उस पूरी स्पेस में आपको स्मॉल बिजनेस से लेके लार्ज बिजनेस के दरमियान में अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए है थियोरेटिकली. द सेकंड थिंग दैट आई फाउंड आउट वाज कि यू नो यू गॉट दीज किड्स फ्रॉम
let's say Nust, the smartest minds in Pakistan, who were coming out and who were talking about innovation driven scalable startups, and they were trying to innovate. So for example, someone like you who said कि जी मैंने पार्किंसन का प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व करना ही करना है, you know. अहमद की मुझे अच्छी बात ये लगी, वो कह रहा है दुनिया में मसले सॉल्व ये हुआ हुआ है, इशारे सॉल्व हुए में, वो एक डायरेक्ट बेसिक चीज़ कह रहे हैं, इशारे सॉल्व हुए में लेकिन बहुत महंगे होते हैं, मैं उसको लोकलाइज़ करूँगा, मैं यहाँ कर लूँगा. और अगर उस मेंटालिटी से बच्चा जब जाएगा एक फैक्ट्री के अंदर तो वो जाएगा, हम हर किसी का बिजनेस है ना, हम प्लानर्स बनाते होते थे, यू नो, डायरीज, प्लानर्स, सेल्फ हेल्प टाइप्स. वो पाकिस्तान में बन रहे थे, उनका पेज इंपोर्ट हो रहा था, उनकी ग्लू इंपोर्ट हो रही थी, उनकी स्पायरल बाइंडिंग्स इंपोर्ट हो रही थी. और उसमें वो यही था कि उसके 10,000 मसाइल थे. एंड मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार नस्ट के बच्चों को तो फोकस ये करना चाहिए कि यार आर्ट पेपर बनाना कितना मुश्किल काम है, ठीक है. इंजीनियर्स कहते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है. व्हाई डोंट यू आर एन इंजीनियर, यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, यू अंडरस्टैंड, यू नो, ऑल ऑफ दिस. You are the right person to go out there and set up the supply chains कि यार मैं एक छोटी फैक्ट्री, माइक्रो फैक्ट्री इसकी लगाई, माइक्रो फैक्ट्री उसकी लगाई, फिर उसको ऑप्टिमाइज कर, so on and so forth. So अगेन लपेटता हूँ, आपके लिए स्टार्टअप है क्या? क्योंकि उस डेफिनेशन ने डिफाइन करना है कि हमारी इकोनॉमी में वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ पे बिल्ड की जा सकती है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई थिंक मैं आपकी डेफिनेशन से आई वुड एग्री. Solving a problem would be a startup as a business अगर आप कर रहे हैं तो, right? अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचूं कि what would be the, let's say कि हमारे जो क्रीम निकल रही है, नास्ट के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उनको क्या फोकस करना चाहिए. You're absolutely right कि हमारे, let me phrase this properly, right? I think अगर हम थोड़ा सा dive deeper करें, मुझे personally मेरा hypothesis ये है कि हमें जो goals सिखाए जाते हैं, they're a bit misaligned to what we should be doing, right? As a collective, as an individual. I think वो misalignment यहाँ पे आती है कि हमें entrepreneurship जो बताई जाती है, वो सिखाई सिर्फ ये चाहती है कि यार you know, you have to be the next Steve Jobs, right? मतलब उससे नीचे कुछ करना ही नहीं है तुमने. जिस तरह हमने बोला कि यार या तो यूनिकॉर्न बनाओ या ना ही करो तो बेहतर है. And you have to, I think मेरे लिए वो चीज़ fundamentally if you break it down, it goes back to कि यार founders बन कहाँ से रहे हैं और उनको सिखा कौन रहा है, right? और उनको क्या सिखाया जा रहा है. और जैसे आपने बोला कि हमारे इंक्यूबेटर्स भी आपको अलाइन इसी तरह करते हैं कि बेटा फंडिंग तुम्हें कब तब मिलेगी जब you would build the next unicorn, right? उससे नीचे आपको कोई फंड नहीं करेगा. Maybe that is the ground reality. मुझे यहाँ के इंक्यूबेटर्स का नहीं पता. Maybe that. मुझे एक बात बताएं जी, आप लोगों ने फंडिंग ली थी? जी इन्वेस्टर्स से जी. किस तरह से, how did that sort of process happened? Oh yeah, that's pre-seed, seed, series A, B, C, investor कितनी equity investor के पास थी, investor कितना role था acquisition में, क्या मतलब what was all of that? Yeah. It's funny, and then we come back to the question जो आपका वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. यार एक्विजिशन की हमारी स्टोरी, इन्वेस्टमेंट की स्टोरी इज ऑल्सो अ बिट लॉन्गर. प्लीज कट मी ऑफ जहाँ पे भी आप कहेंगे. राइट, वी हैड रियली सुपरस्टार इन्वेस्टर्स. प्लग एंड प्ले इन्वेस्टर था एक VC है सिलिकॉन वैली में. दे वर आई थिंक अर्ली इन्वेस्टर्स ऑफ गूगल, पेपैल. वो हमारे ऑन बोर्ड आए थे इन वेरी अर्ली डेज. एंजल इन्वेस्टर्स थे हमारे. वी हैड अरमेस पेरिस का आपने नाम सुना होगा, लग्जरी ब्रांड है, उसकी CEO थी. C&A ब्रांड है, उसका फैमिली ने इन्वेस्ट किया था. ह्यूगो बॉस का COO था, उसने. दे वर लाइक रियली रियली गुड पीपल ऑन बोर्ड. हमने इनिशियली जो पैसे रेज़ किए थे, द वेरी फर्स्ट वन, वो हमने रेज़ किया था थ्रू CDTM, विच मैं उसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू लिंक इट बैक कि why did that institute help me so much. हमने बात की collaboration की, प्रॉब्लम डिस्कवरी की. मैंने बताया कि हमारा आइडिया वहीं से निकला जब इंडस्ट्री ने आके हमें कहा कि यार ये मसला तो हल कर दो हमारा. वो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हुई, हमने उनका मसला हल किया, वही हमारा पहला पेइंग कस्टमर बन गया. हमारा जो नेटवर्क बना हुआ था, वो पहला इन्वेस्टर था, वो प्लग एंड प्ले का वहाँ पे जर्मनी में लीड था.
राइट. प्लग एंड प्ले हाउसहोल्ड नेम था वहाँ पे, वॉज वेरी बिग इन्वेस्टर लाइक आई टोल्ड यू. वो CDTM से था तो उससे पता था कि यार CDTM फाउंडर्स आर बिट डिफरेंट, राइट. लाइक वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है. उसने हमसे बात करना शुरू की. He gave us the first, initial investment. Then he brought us other, people like मैंने आपको बताया angel investors हमने किए, फिर other VCs we brought on board. But at the end of the day, I think for us, it was not about like raising a lot of money, right? हम business fundamentals में थे और I think by choice भी थे, but by circumstances भी थे, क्योंकि when we were raising money, COVID आ गया था. And we had to be like, कौन कपड़े खरीद रहा है और फिटिंग कपड़े कौन खरीद रहा है, like COVID में. So we had to be really smart about where we use the money and how much do we raise. Eventually when we started making money, good money, and we started showing this value prop, then we got more and more money. So कितने rounds हुए थे आपके? We were at Series A. You were at Series A. Yeah. If I were to ask you, आपके जो investor था over from 2018 till 2022 that you got acquired. Yes, 22. Right? Exactly. How much did they multiply their dollar for every dollar that they spent? Yeah, I think. If you could do a quick math. Yeah, हाँ. I mean, we did this. I don't know कि मैं कितना openly उससे बता सकता हूँ, but I think there were investors जिन्होंने 10x आराम से किया था. Right. Yeah. मेरा क्वेश्चन उसमें यही है largely. For a country like Pakistan, do you think that we are at a point where the model, ये एक मॉडल है जी. ये एक मॉडल है कि आप एक चीज़ आते हो, आप उसको करते हो, उसको प्रॉप अप करते हो और उसका स्केल क्विकली बढ़ाते हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का माइंडसेट भी यही है कि मैं गैम्बल करूंगा, मैं 40 में इन्वेस्ट करूंगा, 97% फेल करेंगे, लेकिन जो स्प्रे एंड प्रे, हाँ, जो 3% है वो मुझे इतना रिटर्न ला के देंगे कि मेरी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगी, राइट. जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैमिली ऑफिस भी इसमें घुस रहे हैं एंड सो ऑन. एंड सो when they're looking for problem solvers, they're constantly looking for people who can provide them the multiplier. हाँ जी. That is a 10x, 15x, 20x multiplier. जी. For people, for businesses in Pakistan or problem solvers in Pakistan, that multiplier more often than not does not exist. And so the smartest men in the room, चाहे वो investors हों, चाहे वो problem solvers हों, they tend to let go of lower hanging fruits that may provide them a 2x, 3x, 4x, 5x return over a shorter term. And definitely a much bigger return over the longer term. But they refuse to invest in in that sort of a business because वो तो startup, quote unquote startup नहीं है. अब मेरे लिए, have you ever heard of Interloop की story? नहीं. So Interloop was started by Musaddiq Zulkarnain. He in 1993. Okay. Now this guy, he did engineering. He came to Faisalabad, worked. It's interesting. You born in Faisalabad. He started working in the textile industry, and he identified a problem, something to do with कि the way that they make धागे वगैरह वो सही नहीं कर रहे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 छोटे धागों के बनाने के यूनिट्स बना लिए, ठीक है. और उन्होंने बजाय इसके कि वो फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने वो धागों के यूनिट्स में वो घुसे और घुस के उन्होंने सप्लाई साइड पे आ गए. साथ उन्होंने आई थिंक 2 अपने भाइयों को भी इंटीग्रेट किया उसके अंदर. Not a business family, they don't have the background. Again, someone from Interloop जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और मुसद्दिक जुल्करनैन साहब को भेज सकते हैं तो I would love to have that conversation. उन्होंने उसको जाके 1993 to 2023 30 years में that very small shop that they started now exports roughly around $300 million worth of socks and I think towels also. Wow. They are the biggest hosiery कहलाता है, I believe ये socks का जो होता है. They are the biggest manufacturers of hosiery in the world. Wow, mashallah. They export to Interdex. They blah 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 blah. They're the only or one of the few fully carbon neutral. जो यूरोप की मार्केट उन्होंने टोटल टेक ओवर की हुई है, कार्बन क्रेडिट्स वो खेल रहे हैं, वो एक फ्लो ही अलग चल रहा है, ठीक है. अब उन्होंने जिस बिजनेस में वो आए हैं वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हिसाब से इट वाज द अल्टीमेट सॉलिड बिजनेस. आज का VC 1993 में जाता है और मुसद्दिक जुल्करनैन एक यंग आदमी उनके पास आता है, कहता है सर मुझे पैसे चाहिए, मैंने ना एक लूम की वो निकालनी.
वो कहते हैं यार ये स्टार्टअप थोड़ी होता है, तुम जाओ और जाके जो है ना मुझे बताओ कि तुम कौन सी ऐसी सर्विस बना सकते हो जिसको तुम स्केल करके $300 मिलियन पे ले जाओ. Probably वो नहीं बना सकेगा पाकिस्तान में बैठ के, राइट? बट ओवर 30 years he's made a company that exports 300 million, तो उसकी नेटवर्थ कितनी होगी वो आप उसको हिसाब से देख लें. मेरा मसला ये है, जो मेरा वापिस्तानियों से, आप भी वापिस्तानी हैं, मेरा वापिस्तानियों से एक बड़ा इख्तिलाफ है कि वापिस्तानी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तानी इकोसिस्टम में आके पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. और वन ऑफ द रीजंस व्हाई द फेलियर्स दैट हैव हैपेंड इन द पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम has largely been because these were Pakistanis जिन्होंने वहाँ का मॉडल उठाया, उन्होंने कहा ये मेरा मुल्क है, मैं इसको समझता हूँ, तो मैं ना यही चीज़ यहाँ पे कर लूँगा ना. तो जिस तरह गोरे के लिए काम करके मैंने उसको $100 मिलियन बना के दिया था, तो मैं भी अब $100 मिलियन बनाऊँगा. पाकिस्तान की डायनामिक फ़र्क, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट फ़र्क. और अगेन मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, करीम स्टोरी, जिसमें करीम एक सक्सेस स्टोरी बिल्ड हुई, पाकिस्तान में उन्होंने लॉन्च करके बहुत ज़्यादा यूज़र उठाया. आज करीम के लिए पाकिस्तान एक सर का दर्द है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में वो वैल्यू प्रॉप ही नहीं थी राइड हेलिंग में, जिसमें प्रीमियम भी नहीं था, लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, 2 नंबरी थी, वगैरह वगैरह वगैरह. सो पाकिस्तान एज अ मार्केट वेयर यू कैन डू स्टार्टअप्स फॉर पाकिस्तान becomes increasingly difficult, and maybe we need to redesign what we mean by startups in Pakistan. Maybe we need to redesign कि जी अगर आपका फॉर एग्जांपल आप आते हैं और $100,000 लेकर आते हैं और कहते हैं मैंने पाकिस्तानी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना है, तो स्टार्टअप वेस्ट वाला स्टार्टअप का बंदा वो बस यही सोचेगा कि यार मैंने कोई ऐसा बिजनेस ढूंढना है, और आई एम श्योर आप ऐसे कहेंगे ऐसा बिजनेस ढूंढना, मल्टीप्लायर तो देना मुझे. ऑफ कोर्स, राइट? मेरा दोस्त आके कह रहा है कि यार मैंने देखो भाई मैंने ये पोल्ट्री फार्म बनाया है और मेरा ग्रोथ क्रेजी है पिछले 4 साल में, बट आप पोल्ट्री फार्म को टच भी नहीं करेंगे. ठीक है, वेरी ऑनेस्टली. मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये है कि वाई. अगर वो पोल्ट्री फार्म इज जस्ट लाइक एनी अदर पोल्ट्री फार्म, मैं शायद ना टच करूं. बट अगर मेरा एक दोस्त आता है और आके मुझे कहता है कि यार देखो मैंने ऑर्गेनिक फार्म बनाया है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा. मैं कहूँगा यार दुनिया की ऑर्गेनिक मार्केट किस तरफ है, मिडल ईस्ट की एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट किस तरह से है. ये लड़का जब जाएगा और जाके वो करेगा, तो मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ, मैं इसके साथ क्या गेम खेल सकता हूँ. बिजनेसमैन की तरह सोचे ना. ये पैसा डबलिंग, अगेन मैं बार बार कहता हूँ, डिजेनरेटिव गैम्बलर्स की तरह क्यों सोचते हैं, राइट? मुझे एक चीज़ बेचें कि यार आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर या आई एम अ गैम्बलर. ठीक है, आप यू कैन नॉट बी बिट ऑफ बोथ. एंड सो दैट फॉर मी इज अ बिग शिकायत from a lot of successful, मैं बिल्कुल भी diminish नहीं करना चाह रहा, successful Pakistanis who've done really well abroad in a different dynamic, but are unable to identify how to maneuver through the Pakistani space, especially because Pakistan में they are considered as very credible voices. And so the local voices that actually give you a counter narrative are then diminished कि यार तू पागल है, तुझे क्या पता यार वो अगला वहाँ से आया है. What are your thoughts on that? Great perspective, I would say. I mean, interesting perspective. आप सही कह रहे हैं. I mean, let's say मेरे पास अगर $100,000 है, मैंने इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, तो I would look for a startup जो कि मुझे कह रहा है कि यार मैं बिलियन तो बना ही लूँगा. And if they have a way to do it, I would probably invest there versus like you said, poultry farm, right? उसकी मेरे ख्याल से couple of reasons हैं. जो आपने बात की, I think I will address that first and then come back to this topic. आपने बात की कि यार जो वहाँ का मॉडल है वो यहाँ पे implement करने की कोशिश की जा रही है. Maybe that's how VCs work. I'm not an expert in VC funding. However, मेरा इसका एक additional perspective है, वो ये है कि there is a lack of funding in the middle, right? So basically, I asked someone this, and they said कि VC का मॉडल ये है कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट पे चलते हैं. प्राइवेट इक्विटी फंडिंग होती है जो कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है. प्राइवेट इक्विटीज, या फिर अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ बंच ऑफ लाइक, आई मीन फॉर एग्जांपल आई आल्सो इन्वेस्ट इन बिजनेसेस जो कि कहते हैं कि हम VC फंडिंग लेंगे ही नहीं, राइट? और काफ़ी ऐसे फाउंडर्स हैं जो कि VC फंडिंग लिए और उन्होंने कहा मैं दोबारा नहीं लूँगा, राइट? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. उनका मॉडल ये है कि वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं, वो बिज़नेस फंडामेंटल्स का फोकस करते हैं. आपने बात की कि पोल्ट्री फार्म अगर मेरे पास आके देयर इज़ अ पर्सन जो कि हु नोज हिज शिट उस इकोसिस्टम में, एंड ही इज़ द राइट पर्सन टू डू दैट, और वो मुझे जस्टिफाई कर सकता है बिजनेस फंडामेंटल्स पे, आई वुड इन्वेस्ट इन दैट. इस पूरे प्रोसेस में देयर इज़ मल्टीपल, आई वुड से, डिफ़िकल्टीज़. एक चीज़ ये कि उसको एक्सेस नहीं है मेरे से, राइट? ही कैन नॉट रीच आउट टू मी,
राइट, मैंने एवेन्यू नहीं बनाया हुआ. हाँ, मतलब he cannot reach out to you, or I also feel like one of the reasons why I'm having this conversation is because for the viewer, if people are, मैं इस वजह से कह रहा हूँ because I know someone in Islamabad, पोल्ट्री फार्म की एग्जाम्पल, पोल्ट्री फार्म नहीं कहलाएगा वो, पोल्ट्री तो मुर्गी होती है, गोट फार्म, आई डोंट नो, गाय फार्म क्या कहलाता है, बट he made that simply because he wanted organic food for himself. So उसने ऑस्ट्रेलिया से गाय की ब्रीड मंगवाई, उसने उसको रिप्रोडक्शन उसकी पूरी फिगर आउट की, उसने लैंड लिया, उसने लैंड लेके, अच्छा ये बाय द वे दिस गाय is a very successful AI engineer who worked for a German startup, automobile में वो self driving में काम करता था. He was a CTO, he built a 300 people team in Islamabad. Interesting. And now he works for Motive, and simultaneously उसने एक problem statement को solve करने की कोशिश की. What is the guy called? अतीक. Okay, maybe. मेरे साथ he used to be my class fellow at Fast. तो वो जो है ना पॉडकास्ट से भी आया, well send you his podcast as well. तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जी मैंने पहले ये लेकर आया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार अच्छा, मैंने ग्लोबली स्टडी करना शुरू किया कि ऑर्गेनिक होता क्या है, तो पता लगा कि जी सिर्फ आप गाय को टीके ना लगाओ, सिर्फ दैट्स नॉट ऑर्गेनिक, उसका फीड भी ऑर्गेनिक होना है. तो उसने उसका अनाज भी बगैर फर्टिलाइजर के अपने लैंड में उगाना शुरू किया, अब उसका खाना भी उधर उगता है, तो इट्स सर्टिफाइड 100% ऑर्गेनिक. जब मैं, अच्छा मुझे समझ आई, मैंने कहा यार वाह बड़ा फिट काम कर रहा है यार वो है. मैं दुबई में जब लैंड किया ना, और मैंने कार4 का ऑर्गेनिक सेक्शन देखा, और वो मुझे नज़र आया कि किस तरह से वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहा है, कि मुझे एक विजन आ गया कि 10 साल बाद ये होगा एक्चुअल, और ये छोटा सा रह जाएगा. बिल्कुल. तो तब मुझे नज़र आया कि यार अतीक जो you don't invest in Atiq's, and Atiq is not looking for investments, but as a reference, you don't invest in Atiq's business के यार Atiq जो है वो एक फार्म बना रहा है, उसका ये लैंड है, उसकी इतनी गायें हैं, वो इतनी गाय बेचता है. You invest in the breadth of knowledge that he's acquiring, because आज से 10 साल बाद इस ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर जो मीट इम्पोर्ट हो रहा होगा, उसकी सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस चाहिए, जो कि क्योंकि मीट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, वो बड़ी ही इस वजह से बिकॉज मिडल ईस्ट से मीट पाकिस्तान से जा रहा है. सो द ब्रेथ ऑफ नॉलेज दैट अतीक हैज, दैट्स वैल्यूएबल, राइट. अतीक जैसा बंदा कभी भी इन्वेस्टर्स को इस वजह से रीच नहीं करेगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स की जो लैंग्वेज आगे आ रही है ना, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आती है, जो अक्रॉस द बोर्ड आती है, वो लैंग्वेज मल्टीप्लायर की है. एंड आई फील लाइक दैट जो आपने कहा ना फनल एग्जिस्ट नहीं करता, कि दे आर नेवर गोइंग टू रीच आउट, मुझे वो फनल largely इस वजह से है because the investor is not looking at it like that. Yeah, I understand your perspective. आप सही कह रहे हैं. Maybe that's one of the ways to put it, कि मैंने as an investor, right? मैं जो point आपकी बात ठीक है, I'm aligned, I agree with that. मैं will come back to हमारा जो पिछला discussion point था, just to wrap that up. मेरे ख्याल से जो problem है वो एक नए investment इंस्टीट्यूट की है इन द मिडल, जो कि इस चीज़ को हेल्प आउट कर रहा है, जो कलेक्टर बनता है बेसिकली. या इन अ वे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग मोर टुवर्ड्स लाइक मे बी एंजल इन्वेस्टर्स या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. आई थिंक मे बी हमारे लिए मे बी दिस डज वर्क, कि अगर आप उसे वॉइस करें ओपिनियन को, कि VCs need to change, but I think the VC model है, the way their way of thinking, वो change नहीं होगा. हाँ, it's hard to do that, a bit harder to do that. अगर there is use cases के यार people are actually making 10x छोटे businesses में, maybe they do shift and they're like okay हमारा थोड़ा portfolio वो भी होना चाहिए, but I feel like maybe उनका model different है, they're investing in a different way, different mindset. मेरे ख्याल से for early stage startups भी I think there is not a lot of opportunity कि वो capital raise कर सकें from smart people. Like there's ways of like smart money versus like dumb money. So if there's someone who, for example me, like I don't have hundreds of millions कि मैं invest करूँ into startups or I spray, but maybe if my goals are कि यार you need to understand my goals as an investor, right? VCs का different goal हो सकता है. मेरा goal अगर तो ये है कि I need to diversify my portfolio and my personal vision is aligned with कि यार मुझे organic meat चाहिए या organic वो चाहिए, and I'm passionate about that space, और मैं businesses में invest करना चाह रहा हूँ, not necessarily startups में.
क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ये कर रहे हैं, उधर जर्मनी में भी कर रहे हैं, और आई वॉज ऑल्सो लुकिंग इन टू दिस स्पेस, राइट, कि अगर एक अच्छा बिजनेस बन सकता है with some capital, why not, right? But आपको गोल होना चाहिए कि अगर मेरा गोल है कि यार मैंने 10x ही करना है और मैं 5% of my wealth के साथ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो that's fine. You know, that's a riskier investment. Of course. मुझे एक बात ये बताएं, आपने you invested in startups as well? Yes. Mostly US or Germany. Of course. Did you invest through a VC? क्या आपने उसके उन्होंने आपका पैसा लिया और डिवाइडेड दैट अक्रॉस मल्टीपल स्ट्रीम्स, या डिड यू डू अ डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ एंजल कि मैं राउंड चल रहा है मैं भी मैं अपने चंक डाल देता हूँ? यार बोथ, मेरा वीसी में भी मैंने किया हुआ है और मेरा अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है थ्रू माई होल्डिंग कंपनी, और पर्सनली डायरेक्टली भी मैंने किया हुआ है. I was also looking into Pakistan as well, like I said, मतलब I wanted to fill in this gap. मैंने एक पाकिस्तानी VC से भी बात की थी couple of months ago. उन्होंने भी मुझे ये आइडेंटिफाई किया था कि यार there is no consortium, I think is the right word, like no collective investment fund from angels, right? जो कि अर्लियर स्टेज पे आप आते हैं, आप मुझे ये नहीं कहते कि यार वैसे मेरे पास 10x वाला आइडिया है, बट यू नो $1 billion आइडिया, बट यूर लाइक यार I could have a modest $10 million business. It would give us dividends, or you know, whatever way of doing that. Have you looked at Gandhara Ventures? Shahryar Haidari. Shahryar Haidari. Okay, yeah, I think he's early stage. He's been on the show. He specifically focuses on early stage. Wasn't it Deosai or Deosai? Yeah. Oh, actually, गलत कह रहा हूँ. Deosai. मैंने उन्हीं से बात की थी. अच्छा. उनसे बात की थी. Yeah. So he said even earlier, I think, if I'm not misquoting him, he said even earlier there needs to be, I don't know, I forgot how much he was investing per round, but like for example, आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं यार Awais, you know, I need initial seed money, मैंने यही organic farm लगाना है, I don't have the money to do it, I don't want to raise millions of dollars, I cannot raise it because मेरा model ही नहीं है ये, I don't know, give me 25,000 euros or something dollars के मैं थोड़ा सा system set कर लूँ अपना, and then we're partners, you would get some cash back or whatever, right? तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, क्योंकि उसमें आप पैसा लगाते हो ना तो आपको होता है यार ये भाग जाएगा, ये कर लेगा, ये वो कर लेगा. हाँ, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग दिस, ना ही वो अवेलेबल है ना ही इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं. एंड आई वाज रियली लाइक पिछले दिनों आई वाज रियली लुकिंग इनटू दिस कि यार इज देयर एनी like you know collective investment whatever group super early stages angel investors का जिनके छोटे tickets होते हैं who actually are helping these like businesses who are strong in business fundamentals or could be strong in business fundamentals and don't you know give you this vision of like okay I'm a $1 billion company and not pitching to VCs. Okay, Wes, we're at the 2-hour mark. I'm going to wrap this up. But this was super insightful. मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, अगर कोई 2 घंटे तक पहुँच ही गया ऑडियो या वीडियो के ऊपर, if you are one of those that Wes just talked about, चाहे वो on the investor side हो कि you look for smart opportunities that do not necessarily have to have a 100x growth spurt, but less riskier, but definitely a growth opportunity, smaller ticket size, good business fundamentals, either on the investor side and or on the business side where you know you maybe require funding, you have the ideas, or you have the set of people who have these ideas. Please reach out to me, please reach out to Awais. Awais is already looking for it, तो उसको तो आप reach out कर ही लें, मेरे से भी reach out कर लें, because if this is something that's valuable, I would love to put it out in the public, ताकि और भी लोग इस तरह के आ सकें. I'm going to wrap this up, Awais. मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, I ask all of the guests who come in. You're 28 years old right now. You lived in Pakistan for most part of your life. I believe your first experience started happening in 2015-16 of going abroad for conferences and events and all of those. Then eventually you relocated to Germany, stayed there for 6 years. You're still in Germany, but इस सारी context को मद्देनजर रखते हुए, all of what you've learned throughout your life, particularly in the last 6 years, how do you see Pakistan of 2050, 27 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen, with this caveat that you can't say we have a youth population and you can't say if this happens then this
wali situation. I want you to just take the data that you already have and can see and extrapolate that कि आज के डेटा को मद्देनज़र रखते हुए आपको 2050 का पाकिस्तान कैसा दिख रहा है. And I can't give you an answer कि यार what I think. Give me an image of what comes to your mind when you think 2050. A lot can happen in 30 years, right? Let me build context and then I will give you an answer, short answer on that. Approximately 30 years कर लें आप, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे. 30 years पहले I think internet भी नहीं था, you know, smartphones भी नहीं थे. So there's a lot that can happen in 30 years on the decisions that we take. A country is huge, right? It's political, it's like there's geopolitical situations, social, economic situations, जो कि some things you can control, some things are just out of second में बदल सकते हैं. That's a better way to put it. Some things you can control, some things you cannot. Right. मैं आपका question limit करूँगा to things that we can probably control, right? It could look, there could be an idealistic case, a realistic case, a pessimistic case, right? Depending on हम क्या decisions लेते हैं, किस तरफ जाते हैं. मैं further limit करूँ your question to my expertise where it could be businesses. I think a better way to answer this would be कि हम क्या कर सकते हैं to actually get to this idealistic or realistic scenario which has a better image, outlook. मेरे ख्याल से I think there was, I don't know, मैं roughly read कर रहा था, like Pakistan has the potential to become one of, you know, a very good economy, because we do have a youth population. Germany के बारे में पढ़ रहा था, it's becoming, someone labeled it as the sick man of Europe क्योंकि elder population है. So we could use this to our advantage, right? I mean, 30 years is a long time where we could play our cards right and get into a nice situation. मेरे ख्याल से if we get into a nice financial situation, if we want to get into a nice financial situation, there's two ways to do it. Cut costs, generate value, get more money, right? Mera expertise where I could answer is like, how could you build a business ecosystem that enables you to either cut costs or, you know, generate more value, make more money. हम बात कर रहे थे शुरू में, I think we didn't get a chance to touch on that. I think मेरा perspective ये, I've not been on the ground for like 6 years, might be changed. मेरा perspective ये कि we are a software exporter economy, but export हम जो करते हैं वो IT services हैं. हम सिर्फ IT services ही ट्राई करते हैं कि यार हम उसी को स्केल करें तो more money comes in, उसी को टैक्स करके we would make money. I feel like there's better ways to do it. There, you know, we talked about it a little bit as well. I think we need to shift our mindset from saying कि यार हम लोग IT services company export कर रहे हैं versus हम IT products export कर रहे हैं. And I think there needs to be a lot of work done in changing the mindset of people जो कि export products की तरफ जाएं और services की तरफ ना जाएं. हम individualistic होकर ना सोचें बट कलेक्टिव होकर सोचें. और अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें कि यार हम व्हाट कैन वी डू टू चेंज द आउटलुक ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. जब हम जर्मनी जैसे कंट्री को बेच रहे हैं, जर्मनी अगर सॉफ्टवेयर ख़रीद रहा है पाकिस्तान से, वो क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा यार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, चीपर होगा, डंडी मारी होगी, कहीं ना कहीं मसला होगा, रिलायबल नहीं होगा. वी नीड टू डू सम स्टेप्स टू चेंज दैट आउटलुक. एंड इफ़ वी गेट टू दैट सिचुएशन जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट आउटसोर्स करें, मैं हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, हम रॉ मटेरियल्स की बात नहीं कर रहा, बट आई एम थिंकिंग ऑफ कंपनीज लाइक मेटा, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट जो कि वैली में बैठी हैं, सिलिकॉन वैली में बैठी हैं, जब सिलिकॉन वैली कुछ भी नहीं था. बट इन 30 years they've used the internet to build businesses जो कि एक्सपोर्ट करें. and they're now like some of the biggest companies in the world. I mean, they're running the American economy. Yeah, they're running. Yeah, exactly. Yeah. If you look at the S&P, like 5-6% Apple का होता है, और like they're the core of the US economy. Yeah. वो export कर रहे हैं और वो software products export कर रहे हैं, not services, I would say. So I think we need to shift to that direction. And if we get to that direction, we could be in the trajectory to a very good, you know, stable financial economic situation. I think that's my 2 cents on that. Makes sense. Yeah. Awais, thank you so much for sharing all that insight and for coming in and taking your time out. आपने बोला आप ज़्यादा मीडिया पे नहीं आ रही. The fact that you chose us as a platform to actually come and share your story. Thank you so much for that. And thank you for coming in. Yeah.
एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद है आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, engagement बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. अगर आप किसी चीज़ से एग्री या डिसएग्री करते हैं, अगर आपका स्टार्टअप है या आप इन्वेस्टर हैं या आप VC हैं जिनको मैंने थोड़ा सा लताड़ा, मेरा ये इंटेंशन नहीं था. आई जस्ट फील लाइक ए क्रिटिक होनी चाहिए, not in a disrespectful way, just a food for thought way. But irrespective, if you disagree with anything, let me know in the comment section below. These are just opinions. I would be happy to change them. If you have a solid counter argument, I would love to read your thoughts in the comment section below. But anyways, this was Muzamil Hasan. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.